लर्नर्स, कैसे हैं आप सभी? होप यू ऑल फाइन एंड ऑफ कोर्स प्रिपेयरिंग फॉर योर अपकमिंग यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एग्जामिनेशन. दिस इज सोनिया. वेलकम back to Anis English Academy. In today's video, let's talk about 100 plus major work from the age of Chaucer to Augustan age in English literature. So overall, in today's video, मैं आपको famous writers of age that I describe in heading of my screen. You guys can see the age of Chaucer to Augustan age. जितने भी आपके major writers, उनके वो कौन कौन से major works that you have to prepare, in fact repeated in your examination, we will discuss. So stay tuned till the end of this video because this video will become more relevant for your upcoming examination as well. You guys practice definitely for your examination perspective. So now let's start from Geoffrey Chaucer. Okay, so basically the father of English poetry we consider Geoffrey Chaucer. Most important जिनका timeline you must keep in your mind 1342 1400. Please keep in your mind. So he lived during 14th of century. Time basically जिसको हम the age of Chaucer कहते हैं. During this age आप देखेंगे जो English literature था it began to rise after a long period of French and Latin dominance. आपको पता है before the age of Chaucer जो basically literature पर dominance था it was French and Latin dominance आप देखेंगे. But in the age of Chaucer you see Chaucer was the first great poet to use the English language, right? So he used English language and of course give importance to this language during this period, right? So serious literature and gave it dignity and richness. तो English language को जो dignity and richness मिला है because of the age of Chaucer, because of the writings of Chaucer. Now let's talk about major works written by Geoffrey Chaucer. Okay, so first we will discuss about the Canterbury Tales. In my previous video मैंने आपको कई बार explain किया है regarding the Canterbury Tales. This is most important, a collection of stories, right? It's a collection of stories told by different pilgrims, okay, on their way to Canterbury, right? Basically each tale जो represent की गई थी in this particular the Canterbury Tales में, in the collection of stories में you see कि उसमें ना a section of English society को कहीं ना कहीं represent किया जा रहा था from the knight and the monk, right? And of course to the wife of Bath and the miller. There are so many pilgrims we have, right, in the Canterbury Tales. So these are the most famous. तो इनकी टेल से आप देखेंगे किस तरीके से जो इंग्लिश सोसाइटी है उसको कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट किया जा रहा था उनकी टेल के थ्रू. ओके, चौसर शोज द रियल पिक्चर ऑफ मेडिवल इंग्लिश लाइफ. सो बेसिकली जो 14th सेंचुरी का जो लाइफ था इट वॉज रिप्रेजेंटेड इन अ ग्रेट लेवल विद द हेल्प ऑफ दिस इंपॉर्टेंट द कैंटरबरी टेल्स बाय of course Geoffrey Chaucer, right? Now let's talk about some major defined facts regarding the Canterbury Tales. So as I told, it was Geoffrey Chaucer's masterpiece. 14th century basically middle English period it was considered. और ये इनका एक narrative poem है. It's a narrative poem, right? And heroic couplets basically form में it was written. एंड इसमें आप देखेंगे जो आपके मतलब जॉफ्री चौसर थे ही एक्चुअली प्लान टू 120 टोटल टेल्स ही प्लान बट ओनली 24 कंप्लीटेड. ओनली 24 जो थी वो कंप्लीटेड हुई. ये फैक्ट्स आपको रिवाइज रख रहे हैं अपने माइंड में बिकॉज यहाँ से डेफिनेटली एग्जामिनेशन में कुछ ना कुछ पूछा जाता है. सो यू प्लीज़ prepare accordingly, right? तो basically ये masterpiece I told you of Geoffrey Chaucer's one of the greatest work considered किया जाता है English literature में. It's a frame narrative, right? यानी कि आप इसमें देखेंगे frame narrative किसको बोलते हैं. It means it's a story within a story. तो आपको story में story मिलेगी. That's why we call frame narrative. Okay, so it's also called frame narrative. जो भी मैं आपको कीवर्ड्स बताती हूँ इन्हें आपने प्रॉपर माइंड में सेट करके रखना है बिकॉज यहाँ से स्टेटमेंट्स आपको बनते हैं और कन्फ्यूज़न यहीं से स्टूडेंट्स को रहता है. सो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो इनका बेसिकली द कैंटरबरी टेल्स है तो इसमें आपको ग्रुप मिल जाएगा ऑफ 30 पिलग्रिम्स का. हाउ मैनी पिलग्रिम्स वी हैव? 30 पिलग्रिम्स. ठीक है, सो ओवरऑल आपको 30 पिलग्रिम्स का ग्रुप मिल जाएगा इसमें
हु आर ट्रेवलिंग फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी। लंदन से कैंटरबरी ये लोग जा रहे हैं, वाई, बिकॉज और ऑफ कोर्स टू विजिट द श्राइन ऑफ सेंट थॉमस बैकेट। कहाँ पे जा रहे हैं ये लोग? सेंट थॉमस बैकेट का जो श्राइन है वहाँ पर ये लोग विजिट करने जा रहे हैं। और मैं आपको बता दूँ, जितना भी मैं आपको फैक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर रही हूँ, ईच फैक्ट्स ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन ऑफ यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर एज वेल सेट एग्जाम्स जो आपके रहते हैं लिटरेचर के। इन सभी एग्जाम्स में आपसे ऑलरेडी ये सभी फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं फ्रॉम द जॉफ्री चौसर एंड ऑफ कोर्स अबाउट द कैंटरबरी टेल्स। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ड्यूरिंग द जर्नी ये लोग ने डिसाइड किया था कि कि हम लोग स्टोरीज़ नरेट करेंगे, वी टेल स्टोरीज़, जिससे कि जो टाइम है वो इजीली पास हो जाए, राइट। तो सभी जितने भी आपके पिलग्रिम थे तो उनको बोला गया है कि वन टेल सम फनी, सम मोरल, सम रोमांटिक, राइट। तो टाइप ऑफ दे हैव टू जस्ट मतलब उनको टेल मतलब नरेट करना है और यू सी कि उनको मतलब कहानी सुनानी है ऑन द वे, जिससे कि ये लोग अपना पास अच्छे से टाइम कर ले। सो वी हैव नाइट्स, मिलर, वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है, द पार्टनर, द नन, वी हैव सो मैनी राइट नेम हियर। सो यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड फेमस जो भी हैं अमंग, राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस आपने इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस इज अनफिनिश्ड वर्क। द कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश्ड वर्क है जॉफ्री चौसर का, बिकॉज इन्होंने, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, ही प्लान 120 टेल्स, ठीक है, लेकिन इन्होंने सिर्फ 24 टेल्स कंप्लीट की थी और 2 उसमें से इनकम्प्लीट थी, राइट। क्यों? चौसर की डेथ हो जाती है 1400 में। सो बेसिकली ये वर्क इनका इनकम्प्लीट रह गया और इसका जो फर्स्ट प्रिंट आया था विलियम कैक्सटन के थ्रू आया था 1478 इसका फर्स्ट प्रिंट जो आया था, बेसिकली इट वाज विलियम कैक्सटन, बाय विलियम कैक्सटन, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखेंगे इनकी जो टेल्स है उनको अरेंज पोस्टमस किया गया है आफ्टर हिज डेथ, राइट। सो मैंने ओवरऑल आपको फैक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर दिए। नाउ लेट्स मूव ऑन द बुक ऑफ डचेस। सो फ्रेंड्स, द बुक ऑफ डचेस इज चॉसर्स फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम। ये इनका फर्स्ट इंपॉर्टेंट पोएम है एंड इट वॉज रिटन एज एन एलिजी। आप इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा, एक ये एलिगी है, एक पोयम है जहाँ पे बेसिकली मौन किया जा रहा है और बेसिकली इट वाज कंपोज्ड टू, किसको ऑनर दिया जा रहा है? ब्लैंची को। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, ब्लैंची को ऑनर दिया जा रहा है। ब्लैंची कौन है? डचेस ऑफ लिनकास्टर, डचेस हैं लिनकास्टर, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, डचेस ऑफ लिनकास्टर, लिनकास्टर, ओके। बेसिकली इनका डेथ हो जाता है 1368 द ईयर, ओके, हु डेड? ब्लैंची वॉज द वाइफ ऑफ जॉन गॉन्ट। बेसिकली जो ब्लैंची हैं ये किन की वाइफ होती हैं? ये होती हैं जॉन गॉन्ट की, ठीक है, जॉन गॉन्ट की वाइफ होती हैं। हु वॉज चॉसर्स फ्रेंड एंड, मतलब उनका काफ़ी फेलो फ्रेंड होते हैं ये बेसिकली जो आपके जॉन गॉन्ट हैं, जो बेसिकली जिनकी वाइफ ब्लैंची हैं। सो ओवरऑल आप देखेंगे ये जो इनका पोएम है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इट्स अ ड्रीम विजन। तो ओवरऑल यू सी कि इनकी ना कुछ पोएम्स हैं आपकी जो यहाँ पे मेंशन है, तो ड्रीम विजन में इट वॉज रिटन। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो एक ड्रीम विजन में पोएम्स लिखी जा रही है, रिटर्न की जा रही है, दैट इज द स्टाइल ऑफ मेडिवल स्टाइल। इट्स अ पॉपुलर स्टाइल ऑफ मेडिवल। अगर आप मेडिवल लिटरेचर की बात करेंगे तो यू सी दिस इज द स्टाइल ऑफ मेडिवल वेयर ड्रीम जो विजन रहता है उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया जाता है पोएम्स में, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पोएट है वो मतलब सो रहा है और एक उसे सिंबॉलिक ड्रीम आता है, ठीक है। सो टाइप ऑफ थिंग्स आप देखेंगे। सो ओवरऑल बेसिकली जो इनका ये मतलब इम्पॉर्टेंट वर्क है, आप इसको देखेंगे कि मतलब सबसे पहली चीज़ ये इनका एक ड्रीम एलेगरी है। मिडिल इंग्लिश इट वॉज रिटन और इसमें ना आपको ऑक्टोसिलेबिक कपलेट्स मिल जाएंगे, यानी कि 8 सिलेबल लाइंस मिल जाएंगी। ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, ऑक्टोसिलेबिक कपलेट यहाँ पे यूज़ किया गया है, जिसमें आपको 8 सिलेबल लाइंस मिल जाएंगी। और इट वॉज बेसिकली, अगेन आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज विद यू ऑल, डेथ ऑफ ब्लैंची जो बेसिकली डचेस ऑफ लेंकास्टर है एंड इनके जो फ्रेंड जॉन ऑफ गॉन्ट है, यानी कि जो इनके आपके ब्लैंची के हस्बैंड है और चौसर के फ्रेंड है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, द हाउस ऑफ फेम। द हाउस ऑफ फेम अगेन
आपके जॉफ्री चौसर का ड्रीम विजन पोएम्स में से एक है, प्लीज कीप इन योर माइंड। और ये जो बेसिकली इनका पोएम है, इन दिस पोएम द नरेटर, नरेटर कौन है इसमें, चौसर हिमसेल्फ है, ही फॉल्स एजलीप अगेन एंड ड्रीम्स दैट ही इज कैरिड बाय अ गोल्डन ईगल, राइट। तो उन्होंने क्या ड्रीम देखा है कि वो क्या कैरिड कर रहे हैं, गोल्डन ईगल टू द हाउस ऑफ फेम, राइट। सो ओवरऑल आप यहाँ पर देखेंगे जो इनकी वाली पोयम है, दिस वॉज जो बेसिकली मेन आइडिया है आपकी इस पर्टिकुलर पोयम का, द हाउस ऑफ फेम, यू सी यहाँ पे शो किया गया है हाउ फेम, यानी कि जो यश होता है, जो फेम होता है एंड रेपुटेशन जो होती है इन द वर्ल्ड, वो किस तरीके से मतलब र्यूमर्स एनालाइज्ड बेस्ड ऑन किस पे रहती है, र्यूमर्स पे, ठीक है। सो ओवरऑल यहाँ पे जो चौसर है, ही वॉन्ट्स टू शो दैट पीपल डोंट ऑलवेज गेट फैम फॉर गुड डीड्स, मतलब कि लोग जो है वो हमेशा ये नहीं चाहते कि उन्हें अच्छे कामों के लिए मतलब फेम मिले, समटाइम दोज हु डोंट और हु डू एक्चुअली रॉन्ग ऑल्सो बिकम फेमस। तो यहाँ पे जॉफरी चौसर यही कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि अगर आप सही वर्क करते हैं ओनली तभी आपको फेम मिलता है, यू गेट फेम समटाइम व्हेन यू डू एनी रॉन्ग डीड, ओके। तो वो यहाँ पर यही एक्सप्लोर कर रहे हैं कि हाउ जो ट्रूथ है इज मिक्सड विद गॉसिप। होप यू अंडरस्टैंड हियर द कोर आइडिया ऑफ दिस। मैं आपको और भी ज़्यादा नहीं बताऊंगी, लेट्स मूव ऑन। द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स, फ्रेंड्स ये भी इनका एक ड्रीम विजन पोएम्स में से एक है, द पार्लियामेंट ऑफ फाउल्स बेसिकली, एंड ब्यूटीफुल ड्रीम विजन पोएम्स में से एक है, एज आई टोल्ड यू, और इट वॉज रिटन अराउंड 1381 to 1382 during Middle English period it was written, and it is considered Chaucer's first poem on the theme of love and nature together। तो ये इनका फर्स्ट पोएम है जहाँ पर इन्होंने लव एंड नेचर बोथ दी थिंग्स को टारगेट किया है, यू कीप इन योर माइंड। और फ्रेंड्स इनका ये पोएम इट वॉज रिटन राइम रॉयल स्टैंजा, ओके, इसको राइम रॉयल स्टैंजा में लिखा गया है, यू प्लीज़ कीप इन माइंड 7 लाइन स्टैंजाज वेयर वी सी, और बेसिकली मिडिल इंग्लिश में, और यहाँ पे ना कॉम्बिनेशन आपको देखने मिलेगा एलेगरी, लव, ह्यूमर, फिलोसफी का। तो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे किस तरीके से जो चौसर है ना, उनकी ग्रोइंग मेच्योरिटी एज ए पोएट यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट। सो यहाँ पर बेसिकली आपको क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है, मेच्योरिटी, जो मेच्योरिटी रहता है ना, ग्रोइंग आई एम टॉकिंग अबाउट, जो आपके पॉइंट हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वी हैव ट्रॉइलस एंड क्रुसाइड। दिस इज द ग्रेटेस्ट नैरेटिव पोएम रिटन बाय जॉफ्री चौसर, एंड इट वाज अगेन रिटन ड्यूरिंग 1381 टू 1386 ड्यूरिंग मिडिल इंग्लिश पीरियड। और ये इनका एक लॉन्ग रोमांटिक ट्रेजेडी है, राइट, इट्स अ रोमांटिक ट्रेजेडी, लॉन्ग रोमांटिक ट्रेजेडी। वेयर शुड आई राइट, ओके लेट मी राइट हियर, लॉन्ग रोमांटिक ट्रेजिडी इट इज़, ओके। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया इन लास्ट जो इनका वर्क था द पार्लियामेंट ऑफ फॉल्स, इट वाज अगेन रिटन इन 7 लाइन स्टैंजास, यानी कि आप राइम रॉयल स्टैंजास में इट वाज रिटन, सेम पैटर्न यहाँ पर भी यूज़ हुआ है। एंड यहाँ ना आप देखेंगे विलियम, नॉट विलियम, वाई आई एम जस्ट ऑलवेज रिमेंबरिंग विलियम। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पे जॉफ्री चौसर जो हैं बेसिकली इस पर्टिकुलर मतलब जो इनका ये वर्क है, यहाँ पर इन्होंने ना डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ लव, फेट एंड ह्यूमन इमोशंस की कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट की है। सो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। और ये जो पोएम है ना बेस्ड ऑन है ट्रोजन वार, जो ट्रोजन वार लेजेंड है ना, दिस इज बेस्ड ऑन इट, ट्रोजन वार लेजेंड पर ये बेस्ड ऑन है। और इसमें स्टोरी जो है ट्रॉयलस की दिखाई गई है, जो ट्रोजन प्रिंस होते हैं और किस तरीके से ही इज़ लव फॉर क्रिसाइड, जो एक विडो होती है। सो आप यहाँ पर उसी स्टोरी का बेसिकली सम अप देखेंगे। होप यू अंडरस्टैंड हियर। और इनका जो ये पोएम है इट वॉज डिवाइडेड इंटू 5 बुक्स, इसको 5 बुक्स में डिवाइड किया गया है, 5 बुक्स डिवाइडेड। आपका ये बेसिकली इनका मतलब लॉन्ग रोमांटिक ट्रेजेडी है। एंड इसमें ना आपको राइज एंड फॉल ऑफ लव मिलेगा बिटवीन ऑफ कोर्स ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा। सो दिस इज अबाउट द वर्क आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो आपने अपने माइंड में सस्टेन रखने हैं। नाउ द नेक्स्ट वी हैव द लेजेंड ऑफ गुड विमन। सो बेसिकली फ्रेंड द लेजेंड ऑफ गुड विमन की अगर मैं बात करूँगी तो ये भी इनका नैरेटिव पोएम्स है, बाय नैरेटिव पोएम्स में से एक है। एंड इट वॉज बेसिकली रिटन ड्यूरिंग 1385 टू 1387, ओके। सो
keep in your mind after Troilus and Cressida and of course before the Canterbury Tales. ये जो इनका द लेजेंड ऑफ गुड विमेन है, इट वॉज रिटन. ओके, ये भी इनका एक ड्रीम विजन पोयम है, एलेगरी है, जहां पर इन्होंने सेलिब्रेट किया है फेथफुल एंड वर्चुअस विमेन इन लव. फेथफुल एंड वर्चुअल विमेन को बेसिकली यहाँ पर उन्होंने फोकस किया है. एंड यहाँ ना इस पर्टिकुलर पोएम में आप देखेंगे कि चौसर का जो बेसिकली इन्होंने एक अटेम्प्ट दिया है टूवर्ड्स ऑनर विमेन एंड टू करेक्ट हिज अर्लियर नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स. तो जो इनका रिगार्डिंग विमेन को लेके एक नेगेटिव पोर्ट्रेयल्स इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, स्पेशली अगर मैं बात करूँ ट्रॉयलस एंड क्रेसिडा और द रोमन डी ला रोज करके. तो ये जो इनके वॉक्स थे इसमें इन्होंने कहीं ना कहीं नेगेटिव साइड ऑफ वुमेन का दिखाया था. बट दिस इज द लेजेंड ऑफ गुड विमेन सॉरी, जहाँ पर इन्होंने ऑनर दिया है विमेन को, राइट. सो ओवरऑल आप देखेंगे दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट. एग्जामिनेशन में आपको टाइटल बेस्ड पूछा जाता है और इस पर्टिकुलर पोएम के भी 2 पार्ट्स हैं. सी द प्रोलॉग जो बेसिकली बेस्ड ऑन ए ड्रीम विजन, और लेजेंड्स जो स्टोरी ऑफ गुड विमेन की वहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है. होप यू अंडरस्टैंड हियर. एंड सो वी विल मूव अहेड. तो यहाँ मैं आपको सबसे पहले यही चीज़ बोलूँगी, जॉफ्री चौसर के आपको इन सभी वर्क्स को स्टडी करना है. एज वेल क्रोनोलॉजी ज़रूर से सेट कर लीजिएगा. भाई क्रोनोलॉजी मैं ऑलरेडी अपनी पास्ट वीडियोज़ में बना चुकी हूँ ऑफ जॉफ्री चौसर्स. यू नो I have target this particular 14th century, the father of English, of course, literature and English language के father. तो of course I have discussed about this particular writer. एंड इनके वर्क्स का क्रोनोलॉजी मैंने ट्रिक के थ्रू समझाया है. इफ़ यू वांट सो आई विल सजेस्ट यू दैट पर्टिकुलर वीडियो ऑफ माइन इन योर कमेंट सेक्शन. ज़रूर से देखिएगा. अभी नाउ लेट्स मूव ऑन जॉन गावर. सो गाइस मैं आपको बता दूं, अगर मैं 14th सेंचुरी के आपको इंग्लिश पोइट्स के बारे में बताऊं, मेजर पोइट्स, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल जॉफ्री चौसर, नेक्स्ट वी हैव जॉन गवर एंड विलियम लैंगलैंड. इन तीनों को आपने स्टडी करना और इनके फेमस वर्क आपने ज़रूर से देख के जाने इफ़ यू प्रिपेयरिंग योर सेल्फ 14th सेंचुरी ऑफ लिटरेचर, राइट. तो आपने इन मेजर इंग्लिश पोइट्स को ज़रूर से स्टडी करना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन गैवर. बेसिकली ये आपके कंटेम्प्रेरी हैं जॉफ्री चौसर एंड ऑफ कोर्स विलियम लैंगलैंड, राइट. सो दे ट्राई टू कंसीडर मेजर इंग्लिश पोइट्स ऑफ 14th सेंचुरी. जैसे आप इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में राजा राम मोहन रॉय, नो आर के नारायण, राइट, राजा राव, मुल्क राज आनंद, जैसे कि ये तीनों है ना, इनका अपना ही एक स्टाइल है. दे ट्राई ऑलवेज रिमेंबर एंड इनफैक्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इनको लेके बनते हैं सेम मैनर में. आपने अगर ब्रिटिश लिटरेचर की मैं बात करूँ, आपने जॉफ्री चौसर, जॉन गावर एंड विलियम लैंगलैंड, इन तीनों को स्टडी करना है प्रॉपर मैनर में. इनके वर्क्स आपको देख के जाने. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि ये बेसिकली क्लोज फ्रेंड रहे हैं जॉन गावर जो हैं आपके यू नो चौसर के. एंड बोथ आर, इन दोनों को ही द ट्विन स्टार्स ऑफ द एज ऑफ चौसर बोला जाता है. ट्विन स्टार ऑफ द एज ऑफ चौसर. ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा प्लीज़. एंड बेसिकली जो आपके जॉन गावर हैं, इन्होंने 3 लैंग्वेजेस में लिखा. फर्स्ट ही रॉट इंग्लिश, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा चुके हैं यूजीसी नेट में. दैट्स वाई मैं उन सभी फैक्ट्स को टारगेट कर रही हूँ यहाँ पे. 3 लैंग्वेजेस कौन कौन सी ये लिखते हैं? इंग्लिश, देन नेक्स्ट वी हैव फ्रेंच, राइट, एंड आफ्टर दैट लैटिन. ओके, दीज 3 लैंग्वेजेस आपकी जॉन गावर लिखते थे. एंड विच वॉज वेरी रेयर फॉर दैट टाइम. उस समय काफ़ी रेयर था, यू नो, समबडी जस्ट रोट इन 3 लैंग्वेजेस, राइट. और इनकी जो पोइट्रीज है ना, उसमें आपको रिफ्लेक्शन मिलेगा मोरल, सोशल एंड पॉलिटिकल थीम्स को लेके. और अक्सर इनको मोरल और डिटेक्टिव पोएटिक बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि ये मॉरल लेसन्स को टीच करते हैं अपनी पोइट्रीज के थ्रू. तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इनकी जो 3 लॉन्ग पोएम्स इन्होंने दी थी, रॉट 3 लॉन्ग पोएम्स, और हर एक पोएम इनकी डिफरेंट लैंग्वेज में आई है. जैसे कि फर्स्ट आई एम राइटिंग हियर. फर्स्ट वी हैव द मिरर ऑफ मैन. द मिरर ऑफ मैन, राइट. ये जो बेसिकली इसका इंग्लिश टाइटल है, इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन फ्रेंच, ठीक है, इसको फ्रेंच में इन्होंने लिखा था. नेक्स्ट वी हैव द वॉइस ऑफ वन क्राइंग. द वॉइस ऑफ वन crying, right. It was originally written in Latin. And the third one we have Confessio Amantis, a lover's confession. Confessio
दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कन्फेसियो अमांटिस, ठीक है. इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन इंग्लिश, राइट. सो हियर आई डिस्कस्ड अबाउट 3 मेजर लॉन्ग जो इन्होंने पोएम्स दी हैं. आज जो मैंने डिस्कस करना है आपके साथ इस टुडेज वीडियो में, कन्फेसियो अमांटिस के बारे में मैं आपको फैक्ट सजेस्ट करूंगी बिकॉज दिस आस्क्ड मेनी टाइम इन योर एग्जामिनेशन. So basically, friends, Confessio Amantis, this was considered the masterpiece of John Gower, which was written around 1386 to 1390. Okay, और ये इनका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोएम्स में से एक है दैट कंसिडर्ड द एज ऑफ कोर्स चौसर की जो 14th सेंचुरी की मैं बात करूँ उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम्स में एक कंसिडर किया जाता है कन्फेसियो अमांटिस विच इज़ बाय जॉन गैवर. और ये जो इनका पोएम है इट वॉज रिटन मिडिल इंग्लिश वर्ड्स, राइट. ये आपका मिडिल इंग्लिश वर्ड्स में लिखा गया है. एंड हियर यू सी अराउंड 33 लाइन्स, 33,000 लाइन्स आपको अराउंड यहाँ पे मिल जाएगा, कंटेन है इस पर्टिकुलर वर्क का. और इट रियली मेकिंग इट वन ऑफ द लॉन्गेस्ट नैरेटिव पोएम्स इन इंग्लिश लिटरेचर. बिकॉज ऑफ दिस इट्स अ लॉन्गेस्ट पोएम इन इंग्लिश लिटरेचर, राइट. होप यू अंडरस्टैंड हियर. एंड ये जो पोएम है बेसिकली ब्यूटीफुली इसमें आपको मिक्स मिल जाएगा देखने का, लव, मोरालिटी, रिलीजन एंड फिलोसफी. जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो जॉन गॉवर थे कहीं ना कहीं जो इनका विजन था ह्यूमन लाइफ और उनके वर्च्यू को लेके ज़्यादा टारगेटेड था. तो अपने वर्क्स में ये कहीं ना कहीं उन चीज़ों को मतलब इंक्लूड करते थे, राइट. तो जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जॉन गॉवर जो हैं बेसिकली फ्रेंड थे जॉफ्री चौसर के. एंड इन दोनों ने लिव्ड ड्यूरिंग द रीन ऑफ किंग रिचर्ड द सेकेंड. तो किसका रीन था जिस समय ये दोनों थे? किंग रिचर्ड द सेकेंड, ठीक है. ये सभी फैक्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं. इफ़ यू हैव नॉलेज अबाउट इट सो यू गाइस कैन इजीली आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके, सो बेसिकली ही डेडिकेटेड द फर्स्ट वर्जन ऑफ कन्फेसियो अमांटिस. तो जो फर्स्ट इसका वर्जन आया था कन्फेसियो अमांटिस का, इट वॉज डेडिकेटेड ऑफ कोर्स टू किंग रिचर्ड द सेकेंड. तो किंग रिचर्ड द सेकेंड को बेसिकली ये फर्स्ट जो इसका वर्जन आया था इट वॉज डेडिकेटेड. लेकिन जो लेटर वर्जन आया था वो डेडिकेटेड टू हेनरी द फोर्थ. जो इसका लेटर वर्जन आया था बेसिकली कन्फेसियो अमांटिस का, इट वॉज डेडिकेटेड हेनरी द फोर्थ. ये चीज़ें आपने मेंशन करके रखना है, नोट्स को मैक करके रखना है, अपने पास सिक्योर करके रखना है बिकॉज दीज रियली इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट. सो एज आई टोल्ड अबाउट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस आप देखेंगे जो पोएम है इट इज़ डिवाइडेड इनटू अ प्रोलॉग एंड 8 बुक्स. तो यहाँ पर आपको 8 बुक्स मिल जाएगी इस पर्टिकुलर कन्फेसियो अमांटिस में. एंड ये जो पोएम है इट स्टार्ट और इट बिगिन विद अ लव. जो लवर है वो इज़ ओल्ड एंड सोरोफुल. जो लवर है वो क्या है? बहुत ज़्यादा ओल्ड है और सोरोफुल है क्योंकि ही इज़ सफरिंग इन लव, क्योंकि वो सफ़र कर रहा है कहीं ना कहीं लव को लेकर. और ही गोज़ टू वीनस, वो वीनस जाता है. क्यों जाता है? टू गॉडेस ऑफ लव, जिससे कि वो उनसे अपने लिए मदद मांग सके, ठीक है. तो दिस बिगिन और इट स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर मैंने आपको यहाँ पे सजेस्ट कर दिया. सो ओवरऑल यहाँ पर आप देखेंगे जो 8 बुक्स हैं उसमें मतलब डिफरेंट थीम्स को रिप्रेजेंट किया गया है. सो मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी, ओनली द मेन थिंग्स आई हैव डिस्कस विद यू ऑल. इट वॉज रिटन इन ऑक्टोसिलेबिक कपलेट, जिसमें 8 सिलेबल लाइन्स रहता है. ऑक्टोसिलेबिक कपलेट में इट वॉज रिटन. सो वी हैव टॉक्ड अबाउट कन्फेसियो अमांटिस हियर बाय जॉन गावर. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द वॉक्स कैलेमिटीज. बेसिकली इसका ये जो टाइटल है वॉक्स कैलेमिटीज, इट वॉज ओरिजिनल टाइटल ये लैटिन का है और जिसका मीनिंग अगर मैं इंग्लिश बताऊँ, द वॉइस ऑफ वन क्राइंग. द वॉइस ऑफ वन क्राइंग. वैसे एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्ट वॉक्स कैलेमिटीज करके टाइटल मिलता है और बेस्ड ऑन क्वेश्चंस मिलते हैं. तो ये इनका एक लैटिन वर्ड्स है जो बेसिकली 10,000 लाइन्स का है और इट वॉज डिवाइडेड इनटू 7 बुक्स. इसमें आपको 7 बुक्स मिल जाएंगी. सो ओवरऑल ये इनका एक लैटिन वर्ड्स है, ठीक है. तो आप यहाँ पे देखेंगे जो बेसिकली वॉक्स कैलेमिटीज है इज़ अ मोरल एंड पॉलिटिकल पोएम है, राइट. जो बेसिकली इंस्पायर्ड है बाय द पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 इन इंग्लैंड. अब आपको पीजेंट रिवॉल्ट, दिस इज अगेन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. 1381. तो पीजेंट रिवॉल्ट जो है इट्स अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट. इनफैक्ट आपसे एग्जामिनेशन में यहाँ से फैक्ट्स भी पूछे जाते हैं. तो ये जो इनका पोएम है वॉक्स कैलेमिटीज, ओवरऑल इट इज़ इंस्पायर्ड विद द पीजेंट रिवॉल्ट ऑफ 1381 इन इंग्लैंड.
ओके, सो ये जो पोएम है गावर का, आप इसमें देखेंगे इन्होंने कंडम किया है, क्रिटिसाइज किया है करप्शन जो है बेसिकली सोसाइटी में among rulers as well the common people. Hope you understand here the exact जो idea है, the core idea of this particular Vox calamities as well the inspiration of this, क्योंकि क्वेश्चंस आपको यहाँ से ज़्यादा बनते हैं. सो ओवरऑल आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है. अभी जो इसका मेन पार्ट है इट्स अ मतलब आप इसमें देखेंगे एसोसिएटेड है विद ड्रीम विजन. तो जो पोयम है ना ड्रीम विजन से स्टार्ट हो रही है कि जो गावर है उनको ड्रीम आता है कि सोसाइटी में ना किस तरीके से अपसाइड और डाउन चल रहा है, राइट. सो इसीलिए और इसी पर बेस्ड आपको इसमें दिखेगा आगे. एज आई टोल्ड कि जो ड्रीम विजन है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टाइल रहा है मेडिवल बेसिकली लिटरेचर. अगर मैं बात करूँगी तो मेडिवल जो पीरियड है उसमें बहुत फेमस था ये जो स्टाइल था ड्रीम विजन. सो ओवरऑल आपने जॉन गावर का भी देख लिया एंड जॉफ्री चॉसर की भी मैंने आपको काफ़ी पोएम्स बताई हैं जो बेस्ड ऑन है ड्रीम विजन्स. सो हियर वी टॉक्ड अबाउट बोथ दी वर्क दैट यू हैव टू प्रिपेयर. मैंने सभी इंक्लूड नहीं किए, आई हैव इंक्लूडेड ओनली दैट रिपीटेड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर. अभी नेक्स्ट वी हैव विलियम लैंगलैंड. सो बेसिकली फ्रेंड्स विलियम लैंगलैंड जिनका टाइमलाइन वी हैव 1330 टू 1400, राइट. बिफोर आप मान के चलिए आपके जॉफ्री चॉसर से पहले हैं ये, क्योंकि क्रोनोलॉजी एग्जामिनेशन में पूछी थी जिसमें आपके फर्स्ट विलियम लैंगलैंड है, उसके बाद जॉफ्री चॉसर का बर्थ हो रहा है, क्योंकि इनका जो बर्थ है इट वाज 1340, ओके, और इनका 3030 है 1400. तो ही वॉज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में से एक है ऑफ कोर्स ऑफ द एज ऑफ चॉसर. आई हैव डिस्कस्ड अबाउट इट एंड ही इज द बेस्ट नोन फॉर हिज फेमस एलेगोरिकल पोएम द विजन ऑफ पियर्स प्लोमैन. पियर्स द प्लोमैन, the vision of Piers the Plowman. This is most important allegorical poem. Allegorical poem by William Langland, जिसे आपने प्रॉपर मैनर में स्टडी करना है. मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज मैं आपको बता दूँ जो लैंगलैंड है ये आपके, ही वॉज डीपली रिलीजियस, मोरल एंड ऑफ कोर्स रिफॉर्मिस्ट, यू नो, कहीं ना कहीं थे अपनी राइटिंग्स में. और जब ये लिख रहे थे ना, मतलब अगर मैं जॉफ्री चॉसर की बात करूं, जब जॉफ्री चॉसर रॉट अबाउट द सोशल लाइफ एंड पीपल्स नेचर, जब वो अपने वर्क्स में कहीं ना कहीं सोशल लाइफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे विलियम चॉसर, तो लैंगलैंड जो थे वो फोकस कर रहे थे कहीं ना कहीं सिन, करप्शन एंड ऑफ कोर्स नीड फॉर स्पिरिचुअल ट्रुथ. तो दैट्स वाई आप इनको देखेंगे कि मतलब जो आपके विलियम लैंगलैंड है ये कहीं ना कहीं अ पॉइंट ऑफ कंसाइंस इनको बोला जाता है, ठीक है. सो होप यू अंडरस्टैंड हियर द मेजर थिंग्स अबाउट दिस पर्टिकुलर पॉइंट. और इनकी पोइट्रीज में ना आपको सिंपैथी बहुत ज़्यादा देखने मिलेगी टूवर्ड्स पुअर एंड जो एंगर होते हैं अगेंस्ट करप्शन को लेके, एंगर भी है इनकी राइटिंग्स में, और कहीं ना कहीं ये चर्च एंड सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं एंड सिंपैथी दिखाते हैं टूवर्ड्स द पुअर. ओके, ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. अच्छा, इनका जो ये वर्क है 360 आई एम राइटिंग हियर टू 390, मतलब इसके बिटवीन इट वॉज रिटन, बेसिकली मिडिल इंग्लिश, यू नो. और इसे आप मान के चलिए एक लॉन्ग एलेगोरिकल पोएम है विच वॉज डिवाइडेड इनटू 3 मेन वर्जन. इसको 3 मेन वर्जन में डिवाइड किया गया था. जो 3 मेन वर्जन वी हैव, आई एम जस्ट राइटिंग हियर. नंबर फर्स्ट ए टेक्स्ट, नंबर सेकंड बी टेक्स्ट, नंबर थर्ड ई टेक्स्ट. सो दीज आर दी 3 वर्जन्स जो रिवाइज सेवरल टाइम्स, जिन्हें कई बार रिवाइज किया गया, और इसको अराउंड 700 आपको लाइन्स इसमें मिल जाएंगी डिपेंडिंग ऑन वर्जन, ठीक है. तो ये भी इनका एक ड्रीम विजन है. ड्रीम विजन है आपके विलियम लैंगलैंड का. एंड ऑफ कोर्स इसमें जो नैरेटर है वी हैव विल, जिसको विल बोला गया है, विल जो है आपके नैरेटर, ठीक है. और आप देखेंगे किस तरीके से वो सो रहा होता है और एक सीरीज ऑफ विजन उनके सपनों में आने लगता है. तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसमें 3 मेन सेक्शंस हैं और उसमें आपको ना 8 सेक्शंस मिल जाएंगे, यानी कि अर्ली वर्जन जो है इनका और जो इनका मोर और लेटर वंस है उसमें आपको 8 सेक्शंस मिल जाएंगे, ठीक है. सो ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा डीपली नहीं जाना है इसके फैक्ट्स को लेके, ये आपसे पूछा नहीं गया, बट इवन दो आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस विद यू ऑल. ओवरऑल आपने कोर आइडिया पता होना चाहिए कि ये जो पोएम है किस तरीके से, जो एक ड्रीमर है यहाँ पे विल, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, यहाँ पे ड्रीमर का नेम है विल.
ठीक है, वो किस तरीके से सो रहा है और उसको फिर सीरीज ऑफ विजन आ रहा है, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एंड द थीम ऑल्सो यू कीप इन योर माइंड, जैसे रिलीजियस एंड साल्वेशन, करप्शन ऑफ द चर्च, सोशल जस्टिस, इन सभी को कहीं ना कहीं टारगेट किया गया है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन अनदर। बेसिकली फ्रेंड्स, जो मेरे नेक्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी इंपॉर्टेंट मॉन्क पोएट जॉन लिडगेट, ठीक है। तो इनका जो फ्रेंड्स टाइमलाइन है इट्स 1370 टू 1451। ये आपके मॉन्क पोएट कंसिडर किए जाते हैं, मॉन्क पोएट, राइट। एंड स्कॉलर भी हैं ऑफ द एज ऑफ चौसर, लेकिन जो इनका बिलोंगिंग है टू द लेटर 14th सेंचुरी एंड अर्ली 15th सेंचुरी, लेटर 14th एंड अर्ली 15th सेंचुरी से इनका बिलोंगिंग है आपके जॉन लिडगेट का। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। एंड ही इज कंसिडर्ड ऑफ कोर्स फॉलोअर एंड एडमायरर ऑफ जॉफ्री चौसर। तो कहीं ना कहीं आपके फॉलोअर हैं भाई, उनके बाद आ रहे हैं, कहीं ना कहीं फॉलो कर रहे हैं आपके जॉफ्री चौसर को, आपके जॉन लिडगेट। एंड कहीं ना कहीं ये हेल्प भी कर रहे थे जो चौसेरियन पोइटिक ट्रेडिशन है उसको और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करने में। जो चौसेरियन पोइटिक जो ट्रेडिशन था उसको कहीं ना कहीं डेवलप करने में उसको हेल्प कर रहे थे आपके जॉन लिडगेट, राइट। सो ही वॉज ऑफकोर्स, आपको मैंने बताया मॉन्क रहे हैं। एंड लैटिन, फ्रेंच एंड इंग्लिश बेसिकली इन्होंने स्टडी किया था। एंड वेल एजुकेटेड थे, लैटिन भी, फ्रेंच भी एंड इंग्लिश भी। और इनको आप देखेंगे कि इन्होंने ना जो वॉक्स दिए थे, लाइक जो इनकी पोइट्रीज रहती हैं, जो भी इनके वॉक्स रहते हैं मेन, तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब इन्होंने बहुत ज़्यादा, एक तो सबसे पहली बात इन्होंने, इनका इन्फ्लुएंस आपको चौसर का इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा इनकी राइटिंग्स में। और मोरल, हिस्टोरिकल एंड एलेगोरिकल सब्जेक्ट्स को ज़्यादा ये चूज़ करते थे, टारगेट करते थे। और ऑफ कोर्स चौसेरियन स्टाइल यानी कि मिडिल इंग्लिश ये बेसिकली यूज़ करते थे टू राइट हिज वर्क्स। एंड रॉयल, पैट्रोन, मोरल, रिलीजियस टाइप्स ऑफ आपको थीम्स इनके वर्क्स में देखने मिल जाएंगे। अभी जो मैं आपको वर्क्स इनके डिस्कस कराने वाली हूँ यहाँ मेरी वीडियो में, सो द फॉल ऑफ प्रिंसेस सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, विच वॉज रिटर्न अराउंड 1431 टू 1438। तो देखिए यहाँ पर ना आप ईयर ऑफ पब्लिकेशन को ज़्यादा टारगेट नहीं कर सकते, बट अराउंड मैं आपको बता सकती हूँ, इट वॉज सर्कुलेटेड बिटवीन, ओके। तो बेसिकली जो इनका ये द फॉल ऑफ प्रिंसेस है, इट्स अ बकाशियोज, जो बेसिकली बकाशियोज है ना, तो उन पर कहीं ना कहीं बेस्ड ऑन है। और इसको ट्रांसलेट एंड इसको जो एक्सपेंडेड फॉर्म आया था बाद में आया था, जो बेसिकली फ्रेंच वर्जन में आया था। जो बेसिकली इसका जो लेटर जो बोल सकते हो ट्रांसलेटेड और एक्सपेंडेड फॉर्म आया था, इट वाज फ्रेंच वर्जन, राइट। तो फ्रेंच वर्जन का बेसिकली ओरिजिनल रिटन है इसका। और देन आफ्टर इट वाज ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। फ्रेंड्स प्लीज डोंट कंफ्यूज हियर, ओरिजिनली इट वाज रिटन इन फ्रेंच, ठीक है। तो इसका टाइटल भी अनदर है, बट इसका जो इंग्लिश बेसिकली ट्रांसलेशन आया था, बाद में आया था, वो लेटर ऑन आया था। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये इनका लार्जेस्ट पोएम है बेसिकली, जहाँ पे 36 लाइन्स आपको देखने मिल जाएंगी। 36,000 लाइन्स आपको यहाँ पे देखने मिल जाएंगी। मैं लाइन्स को ज़्यादा क्यों टारगेट कर रही हूँ, जिससे कि आप कंसीडर कर सके व्हाट एग्जैक्टली इट इज़। तो लिडगेट का ये लार्जेस्ट पोएम में से एक है, जिसे इन्होंने राइम रॉयल यानी कि 7 लाइन स्टैंजाज में लिखा है। और इसमें ना एक ट्रेजिक स्टोरी दिखाई गई है ग्रेट मैन एंड विमेन की, फ्रॉम द हिस्ट्री से उठाई है बेसिकली। तो ट्रेजिक स्टोरीज आपको यहाँ पे मिल जाएगी ग्रेट मैन और ग्रेट विमेन की, जिसमें किंग्स, क्वींस, वॉरियर्स, तो उन सबको कहीं ना कहीं इन्होंने टारगेट किया है और कहीं ना कहीं मोरल आइडिया को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है। होप यू अंडरस्टैंड हियर। अभी जो इनका नेक्स्ट है द ट्रॉय बुक, राइट। तो ये बेसिकली इनका अराउंड 1412 और 1420 अराउंड लिखा गया है। तो बेसिकली ये जो इनका है, इसे भी आप देखेंगे एक इनका एक एपिक पोएम है, इट्स एन एपिक पोएम, ठीक है, जिसमें रिटेल किया गया है ट्रोजन वॉर को। ट्रोजन वॉर को वापस से इसमें रिटेल किया गया है इन दिस एपिक पोएम में। एंड इसमें भी आपको 30,000 लाइन्स अराउंड मिल जाएगा, जिसे इन्होंने हीरोइक कपलेट्स में लिखा है, ठीक है। और इसका भी बेसिकली जो इनका ये मतलब वॉक है, एपिक पोएम है, इट्स बेस्ड ऑन हीरोइज्म, फेट, राइट। एंड नेक्स्ट वी हैव द सीज ऑफ थेब्स, ठीक है। तो ये जो इनका पोयम है, इट्स एज अ कंपेनियन पीस और सीक्वल है ये कहीं ना कहीं चौसर की कैंटरबरी टेल्स का। तो दिस इज द सीक्वल और कंपेनियन पीस भी आप इसको बोल सकते हैं द कैंटरबरी टेल का, द कैंटरबरी
टेल्स, ठीक है, बाय जॉफ्री चॉसर. सो दिस इज द सीक्वल और कंपेनियन पीस. तो यहाँ पर ना इन्होंने इमेजिन किया था हिमसेल्फ एज अ पिलग्रिम, राइट. तो एज ए पिलग्रिम ये अपने आप को यहाँ पे मतलब इमेजिन कर रहे हैं आपके लिडगेट, और ये ज्वाइन कर रहे हैं चौसर की जो कंपनी है ऑन दियर जर्नी टू कैंटरबरी, ठीक है. अभी वो स्टोरीज बता रहे हैं, यहाँ पे थेप्स की स्टोरी बता रहे हैं, जो एंशियंट ग्रीक सिटी है ना, थेप्स, जो बेसिकली टाइटल है इसका. तो वहाँ की बेसिकली ये स्टोरी बता रहे हैं किस तरीके से वो डिस्ट्रॉय हुआ सिविल वॉर एंड फेट की वजह से. तो ओवरऑल दिस इज बेस्ड ऑन द कैंटरबरी टेल्स बाय जॉफ्री चॉसर. होप यू अंडरस्टैंड द फैक्ट्स आई डिस्कस्ड हियर. अभी जो नेक्स्ट वी हैव द टेम्पल क्लास, ये इनका एक ड्रीम विजन पोयम है. इट्स अ पोयम, ड्रीम विजन पोयम, इट्स राइट, वेरी इंपॉर्टेंट. एंड ऑफ कोर्स यहाँ पर भी आपको इन्फ्लुएंस देखने मिलेगा चौसर का द हाउस ऑफ फेम, जो बेसिकली चौसर का ड्रीम विजन पोयम है, उसी का इंस्पायरेशन है द हाउस ऑफ फेम. एंड द नेक्स्ट वी हैव द बुक ऑफ डचेस. तो बेसिकली दीज टू जो इनकी ड्रीम विजन पोएम्स थी आपकी जॉफ्री चौसर की, तो वो कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस्ड है, उनसे इन्फ्लुएंस्ड है आपके द टेम्पल ऑफ ग्लास जो आपके जॉन लिडगेट का है. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है. इट कैन बी आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर टाइप ऑफ क्वेश्चन ही आपको देखने मिलते हैं. सो जस्ट कीप इन योर माइंड. ओके, सो हियर वी टॉक्ड अबाउट ऑल मेजर वर्क्स रिटन बाय जॉन लिडगेट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्विकली सर थॉमस मोर. So basically, friends, Sir Thomas More, one of most important 1478 after John Lydgate to 1535, basically was a great English scholar and writer रहे हैं of the Renaissance period. इनका जो एसोसिएशन है आपके रेनिसा पीरियड से है. तो आफ्टर गाइज द एज ऑफ चौसर वी मूव टूवर्ड्स द रेनिसा एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर. और इस पर्टिकुलर एज से आपको सर थॉमस मोर को और इनके वर्क्स को ज़रूर से देखना है. ही वॉज वन ऑफ द लीडिंग फिगर्स ऑफ इंग्लिश ह्यूमनिस्ट मूवमेंट, राइट. कौन सा मूवमेंट है जिससे इनका एसोसिएशन है? इंग्लिश ह्यूमनिज्म मूवमेंट, ठीक है. तो ये कुछ मूवमेंट्स हैं जो आपसे डायरेक्ट एग्जामिनेशन में पूछ ले जाते हैं. ओवरऑल ये लीडिंग फिगर्स कंसिडर किए जाते हैं द इंग्लिश ह्यूमनिस्ट मूवमेंट के. और मोस्ट फेमस जो इनका बेसिकली बुक था यूटोपिया, विच वॉज 1516 पब्लिकेशन. 1516 वन ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनफैक्ट अ मास्टर पीस ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी. ये बेस्ड ऑन है पॉलिटिकल फिलोसफी पर एंड अर्ली ह्यूमनिस्ट लिटरेचर को लेकर, अर्ली ह्यूमनिस्ट लिटरेचर को लेकर बेसिकली टारगेट किया गया है. और इसमें आप देखेंगे ही लिव्ड, जैसे कि मैं आप जानते हैं आपके जो सर थॉमस मोर हैं, ही लिव्ड ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग हेनरी द थर्ड, सॉरी नॉट थर्ड, एट्थ. जो आपके सर थॉमस हैं ये किन के रीन में रह रहे थे जिस समय आपका रेनिसा एज था. तो बेसिकली वहाँ पे उस समय रीन किसका था? किंग हेनरी द एट. मैं इनको थर्ड हमेशा पढ़ लेती हूँ, किंग हेनरी द एट्थ, ठीक है. सो ओवरऑल जैसा कि आप जानते हैं, तो इन्हों को ना कहीं लॉर्ड चांसलर ऑफ इंग्लैंड सर्व्ड किया जाता था आपके सर थॉमस मोर को. एंड कई बार इन्होंने रिफ्यूज़ भी किया टू एक्सेप्ट हेनरी द एट्थ एज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड. बट इवन दो ही वॉज एग्जीक्यूटेड, ठीक है, इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया था 1535 में. तो ये तो चीज़ें इनकी इनसे एसोसिएटेड है आपकी कहीं ना कहीं थॉमस मोर से, विच नॉट आस्क्ड इन एग्जामिनेशन इन अ रिपीटेड फॉर्म. बट इनका जो ये वर्क है ना 1516, इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट. देखो ये उटोपिया जो लिखा है ना, बेसिकली इसमें आप देखेंगे इस टाइटल का ही मतलब है नो प्लेस. इस टाइटल का क्या मतलब है अपने आप में? नो प्लेस, यानी कि एक ऐसा प्लेस. उटोपिया मीन्स क्या हो गया? नो प्लेस और नाउ वेयर, नो वेयर आप बोल सकते हो. एक इमेजिनरी बेसिकली परफेक्ट सोसाइटी को यहाँ पे टारगेट किया गया है, फोकस किया गया है, विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, राइट. सो एट एक बेसिकली इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी है यूटोपिया. इट्स एन इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी. भाई सोसाइटी तो कभी परफेक्ट हो ही नहीं सकती. सो बेसिकली एक परफेक्ट सोसाइटी को इमेजिन किया गया है विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, ठीक है. तो मैं आपको फ्रेंड्स कुछ फैक्ट्स यहाँ पे सजेस्ट कर दूँ रिगार्डिंग यूटोपिया. सो इट वॉज रिटन इन लैटिन
और इसको फर्स्ट 1516 में पब्लिश कराया था. देन आफ्टर इसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन आया इट केम 1551. जस्ट कीप इन योर माइंड, जो इंग्लिश ट्रांसलेशन, जो इंग्लिश एडिशन इसका आया है, इट वॉज पब्लिश 1551. नाउ यू हैव टू जस्ट कीप इन योर माइंड, आपसे एग्जामिनेशन में दे आस्क्ड अबाउट यूटोपिया लैटिन वर्जन और इंग्लिश वर्जन. ओके, और ये जो इनका बुक है इट्स डिवाइडेड इनटू 2 बुक्स. ये बेसिकली यूटोपिया जो है इट्स 2 बुक में डिवाइडेड है. फर्दर 2 बुक्स यहाँ पर इनको मेन मिल जाएगी. और इट्स पॉलिटिकल एंड सोशल सटायर है, जो बेसिकली डायलॉग फॉर्म में लिखा गया है. तो यहाँ पे आपको डायलॉग फॉर्म मिल जाएगा, डायलॉग फॉर्म आपको इसमें देखने मिल जाएगा. और इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेनेसा ह्यूमनिज्म मूवमेंट जब एक्टिव था, इट वॉज रिटन ड्यूरिंग दैट टाइम. अभी मैं आपको कुछ बुक फर्स्ट के बारे में डिस्कस करूँगी. जो बुक फर्स्ट है, एज आई टोल्ड यू, इट वॉज डिवाइडेड इंटू 2 बुक्स फर्दर. सो बेसिकली जो बुक फर्स्ट है इसका, वो एक डायलॉग है बिटवीन थॉमस मोर एंड पीटर गाइल्स. क्योंकि ये ऑलरेडी आपसे फैक्ट्स पूछे जा चुके हैं, दैट्स वाई आई एम जस्ट गोइंग टू रिवाइज विद यू ऑल. बेसिकली जो फर्स्ट बुक है उसमें जो डायलॉग हैं वो बिटवीन किसके हैं? फर्स्ट आपके थॉमस मोर हैं एंड नेक्स्ट कौन है? पीटर गाइल्स. ठीक है, तो एक फिक्शनल ट्रैवलर है यहाँ पर जिसका नेम है राफेल हिथलॉडे. मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स यहाँ पे, जिनसे एसोसिएट करके कई बार एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आपसे रिपीटेड फॉर्म में पूछा गया है. ऑफकोर्स राफेल हिथलॉडे, हिथलॉडे. ठीक है, तो राफेल हिथलॉडे जो है ये बेसिकली एक फिक्शनल ट्रैवलर है. जो नेम यहाँ पे दिखाया गया है दैट्स फिक्शनल. और हिथलॉडे जो है किस तरीके से क्रिटिसाइज करते हैं करप्शन ऑफ यूरोपियन गवर्नमेंट्स का, और इनजस्टिस जो बेसिकली देखा जाता है लॉज में, इनइक्वालिटीज बिटवीन रिच एंड पुअर में देखी जाती है. सो दीज आर्ग्यूमेंट इज डन बाय हिथलॉडे इन दिस फर्स्ट बुक. ओके, और आर्ग्यूमेंट जो है वो किस तरीके से प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ग्रीड आर द मेन कोज ऑफ क्राइम एंड सफरिंग. तो इन्होंने आर्ग्यूज के बारे में क्या बताया कि क्यों होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड ग्रीड आर द मेजर रीजन्स टू ऑल दी सफरिंग्स और क्राइम. ठीक है, अभी जो बुक सेकंड होता है, यहाँ पे मैंने बुक फर्स्ट बताया, जो बुक सेकंड होता है, बुक सेकंड में क्या होता है, जो हिथलॉडे है, जो बेसिकली फिक्शनल आपका ट्रैवलर है राफेल हिथलॉडे, तो ये डिस्क्राइब करते हैं एक आइलैंड ऑफ यूटोपिया. अब ये ऐसे आइलैंड यूटोपिया की बात करें विच इज़ नॉट और विच डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी, यानी कि एक इमेजिनरी परफेक्ट सोसाइटी की यहाँ पर ये बात कर रहे हैं यूटोपिया. अब ये उसके बारे में क्या एक्सप्लेन करते हैं, जो आपके हिथलॉडे हैं, ये हिथलॉडे ही बताते हैं, ट्रैवलर जो हैं यही इमेजिन करके यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि देयर इज़ नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, एवरीथिंग इज शेयर्ड. वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगा. क्यों? क्योंकि इन्होंने पीछे अभी सजेस्ट किया बुक फर्स्ट में कि जितना भी क्राइम रहता है, जितना भी सफरिंग्स रहता है, दीज बिकॉज ऑफ ग्रीड एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी. तो वो कहते हैं अब हम यूटोपिया की बात करें, कि आइलैंड की बात करें, तो यहाँ पे कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी होगा ही नहीं. पीपल वर्क ओनली 6 आवर्स अ डे. सिर्फ 6 घंटे लोग काम करेंगे, 6 आवर्स ये यहाँ पे सजेस्ट करते हैं. ये सभी चीज़ें आपने ध्यान में रखना है जो मैं आपको मेजर थिंग्स बता रही हूँ रिगार्डिंग आपकी ये पर्टिकुलर जो बुक है यूटोपिया, बिकॉज यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनेटली मिलता है. सो यहाँ पर वो बता रहे हैं 6 आवर्स रहेगा एक दिन काम करने का हर एक पर्सन का. ऑल आर एजुकेटेड होंगे, देयर इज रिलीजियस टॉलरेंस होगा यहाँ पे, नो लोअर मतलब कि कोई भी लॉ नहीं होगा, क्योंकि लॉ आर सिंपल. ठीक है, वो कहते हैं गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज्ड फॉर चेन्स फॉर स्लेव्स नॉट फॉर प्राइड. वो कह रहे हैं जो गोल्ड है, जो हम ऑर्नामेंट्स बना के पहनते हैं और जिसको सबसे ज़्यादा खतरा रहता है चोरी होने का और जिसकी वजह से करप्शन रहता है, तो वो कहते हैं ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना, इसको हम चैन की तरह यूज़ करेंगे, जो स्लेव्स होते हैं ना उसको बांधा करेंगे, नॉट फॉर प्राइड. होप यू अंडरस्टैंड हियर. और गवर्नमेंट जो है यहाँ पे इलेक्ट की जाएगी डेमोक्रेटिकली. तो हियर इज़ द आइडिया इमेजिनरी. ये इनका सब फिक्शनल जो भी एक इमेजिनेशन है रिगार्डिंग यूटोपिया और उसका जो भी एक आइडियल स्टेट है, तो मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दिए. और यहाँ उन्होंने मेन आइडिया यही दिया है कि जो आपके थॉमस मोर है, उन्होंने कहीं ना कहीं एक विज़न दिया है ऑफ अ जस्ट, इक्वल एंड रैशनल सोसाइटी का, जो फ्री है फ्रॉम ग्रीड, पॉवर्टी एंड करप्शन से. सो एग्जैक्टली द आइडिया ऑफ दिस पर्टिकुलर बुक जो इन्होंने दिया है आपके थॉमस मोर ने, मोस्ट इंपॉर्टेंट है. और ऑलमोस्ट मैंने आपको सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी यहाँ पे डिस्कस कर दिए. अभी लेट्स मूव ऑन द हिस्ट्री ऑफ किंग रिचर्ड द थर्ड. राइट, तो ये इनका अराउंड लिखा गया है 1513. ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है, लैटिन एंड इंग्लिश, राइट, बोथ द लैंग्वेजेस में ये लिखा गया है हिस्ट्री ऑफ द किंग रिचर्ड द थर्ड.
और इसको ना फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश हिस्टोरिकल प्रॉस कंसिडर किया जाता है। इंग्लिश हिस्टोरिकल प्रॉस का ये फर्स्ट एग्जाम्पल है हिस्ट्री ऑफ द रिचर्ड द थर्ड की, और इट्स अ बायोग्राफिकल एंड हिस्टोरिकल अकाउंट भी ऑफ कोर्स किंग रिचर्ड द थर्ड का, मतलब किंग रिचर्ड द थर्ड के बारे में यहाँ पे डिस्कस किया गया है। रिचर्ड थर्ड किस तरीके से क्रूल, एम्बिशियस और डिसीटफुल टायरेंट थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। किस तरीके से वो मर्डर्ड, मतलब इसमें एक टेल बताई गई है कि जो एक मर्डर्ड होता है वो अपने मर्डर्ड होता है जो एक नेफ्यूज, मतलब द प्रिंस इन द टावर, किस तरीके से टू गेन द थ्रोन आफ्टर मर्डर। ठीक है, तो इविल और मैन्युपुलेटिव जो नेचर होता है, जो सेंट्रल फोकस है यहाँ पे रिचर्ड का, उसे कहीं ना कहीं सेंट्रलाइज किया है। रियलिस्टिक बायोग्राफी है जिसे इंग्लिश में फर्स्ट रियलिस्टिक बायोग्राफी इट वॉज कंसिडर्ड। लेटर शेक्सपियर यूज दिस वर्क एज द मेन सोर्स फॉर हिज फेमस प्ले रिचर्ड द थर्ड। जो रिचर्ड द थर्ड बेसिकली विलियम शेक्सपियर का, देन आफ्टर यू स्टडी इन एलिजाबेथन एज, विलियम शेक्सपियर हम स्टडी करते हैं, अभी फर्दर आएगा, तो उनका जो प्ले था ना रिचर्ड द थर्ड, वो यहीं से बेसिकली उसका जो मेन सोर्स है वो यहीं से आया है, थॉमस मोर के हिस्ट्री ऑफ रिचर्ड द थर्ड से। होप यू अंडरस्टैंड हियर द फैक्ट्स आई हैव डिस्कस विद यू ऑल। अभी लेट्स मूव ऑन नेक्स्ट वन, सर थॉमस वेट। सो गाइज नेक्स्ट मैं आपको सर थॉमस वेट कवर कराने वाले हूँ, इनफैक्ट इनके मेजर वर्क्स। नाउ लेट मी एक्सप्लेन अबाउट सर थॉमस वेट। सबसे पहले हम लोग इनका टाइम लाइन देखेंगे 1503 टू 1545। देखिए क्रोनोलॉजी में बेसिकली आप टाइप ऑफ क्रोनोलॉजी मान सकते हैं, राइटर्स में क्रोनोलॉजी में लेकर आई हूँ। ये जो आपके सर थॉमस वेट हैं वन ऑफ मोस्ट अर्लीस्ट इंग्लिश रेनेसा पोइट्स में से एक हैं, जिन्हें सर्व किया गया था इन द कोर्ट ऑफ किंग हेनरी द एट्थ, राइट। एंड इनको कर्टियर, डिप्लोमेट एंड पोइट कंसिडर किया जाता है। और मैं आपको बता दूं, ही इंट्रोड्यूस्ड इटालियन पोइटिक फॉर्म्स, स्पेशली द सोनेंट। ओके, जो इटालियन पोइटिक फॉर्म सोनेंट जो है, सोनेंट को बेसिकली इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लिश लिटरेचर में आपके सर थॉमस वेट के थ्रू किया गया है। इनको एसोसिएट किया जाता है विद दिस ग्रेट कॉन्ट्रीब्यूशन इन लिटरेचर। ओके, सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग अबाउट दिस कि जो सोनेंट्स हैं, जो सोनेंट हैं इंट्रोड्यूस्ड बाय आपके थॉमस वेट इन लिटरेचर। ओके, सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखना है, इटालियन पोइटिक फॉर्म बेसिकली सोनेंट है जो ओरिजिनेट है इसका, और दैट्स वाई ही कॉल्ड फादर ऑफ इंग्लिश सोनेंट। तो आपके सर थॉमस वेट को फादर ऑफ इंग्लिश सोनेंट भी बोला जाता है। नाउ लेट्स डिस्कस अहेड, मतलब इनका अगर मैं रोल की बात करूँ, व्हाट हिज रोल, अगर मैं इनकी पोइट्रीज़ की बात करूँ इन इंग्लिश पोइट्री की, तो आप देखेंगे न्यू पोइटिक स्टाइल इन्होंने, ऑफ कोर्स ही ब्रॉट न्यू पोइटिक स्टाइल एंड सब्जेक्ट इनटू इंग्लिश वर्ड्स, राइट। इनकी पहले की जो इंग्लिश पोइट्रीज आप देखेंगे वो मेडिवल थी, हम लोगों ने देखा बेस्ड ऑन मोरल, रिलीजियस एंड एलेगोरिकल थी। लेकिन वेट ने, जो आपके सर थॉमस वेट हैं, जैसे कि इन्होंने इंट्रोड्यूस किया रेनेसां आइडिया, जिसमें इन्होंने लव, पैशन, इंडिविजुअलिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट ह्यूमन इमोशंस को कहीं ना कहीं टारगेट किया और अडॉप्ट किया पेट्रार्चन सोनेट्स को, जो इटालियन मॉडल है उसको इन्होंने इंग्लिश फॉर्म में बेसिकली इंट्रोड्यूस किया। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया, तो कर्टली लव, डिसइल्यूजनमेंट इन लव, पर्सनल इमोशंस, रिलीजियस रिफ्लेक्शंस टाइप ऑफ आपको थीम इनके वर्क्स में मिल जाएंगे। और इनकी जो पोइट्रीज रहती हैं डायरेक्ट एंड पर्सनल रहती हैं, ठीक है। तो ओवरऑल अभी जो इनका मैं आपके साथ वर्क डिस्कस करने वाली हूँ, फर्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स। सो गाइस फॉर योर इन्फॉर्मेशन मैं बता दूँ, सॉन्ग्स एंड सोनेट्स इट्स अ फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी। ये बेसिकली फर्स्ट प्रिंटेड एंथोलॉजी है। एंथोलॉजी आप समझते हैं ना, जिसमें मोर देन वन आपके वर्क्स इंक्लूडेड होते हैं, तो एंथोलॉजीज है बेस्ड ऑन है आपका इंग्लिश लिरिक एंड सोनेट्स पर। क्योंकि इसमें आपके सर थॉमस वेट की और अर्ल ऑफ सरे, हेनरी हावर्ड की भी पोएम्स इंक्लूड है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है, जिससे कि मैं आपको यहाँ पे फैक्ट सजेस्ट कर दूँ। एंड इट मार्क, जो आपके सॉन्ग्स एंड सोनेट्स है, इट इज मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ द इंग्लिश रेनेसां इन पोएट्री, राइट। इसको जस्ट बिफोर पब्लिश किया था एलिजाबेथन एज, राइट। इसने कहीं ना कहीं डोर ओपन किए थे पोएट्स लाइक सिडने, स्पेंसर एंड शेक्सपियर, राइट। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट सॉन्ग्स एंड सोनेट्स, मैंने आपको डिस्कस कर दिया। नॉट ओनली इट्स बाय सर थॉमस वेट, सर थॉमस वेट का पोएम इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है, एंड अदर पोइट्स ऑल्सो। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, फर्स्ट एंथोलॉजी कंसिडर किया जाता है, दैट्स वाई आई इंक्लूड हियर। ओके, अदरवाइज अगर सर थॉमस वेट का आपको वर्क देखना है, इनकी पोएम देखनी है, हुज लिस्ट टू हंट,
So guys, this is the second time of mine where I discuss about this important work by Sir Thomas Wet, whose list to hunt, क्योंकि आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है अभी रिसेंटली जो आपका पेपर हुआ है, वेयर दिस पर्टिकुलर पोएम आस्क्ड, बेसिकली ये सोनेंट है जो एक इमिटेशन है ऑफ पेट्रियार्चिन सोनेंट का। पेट्रियार्च सोनेट 190 का ये बेसिकली जो इटालियन फॉर्म है वहाँ से इमिटेट किया गया है। इसे बेसिकली अडॉप्ट किया गया है वेट के थ्रू इनटू इंग्लिश, राइट। और कहीं ना कहीं पर्सनल कर्टली कॉन्टेक्स्ट इट कंसिडर, राइट। और ये जो बेसिकली पोयम है या सोनेट है, इट वाज डेडिकेटेड और इट इज़ बिलीव्ड दैट ये जो पोयम है बेसिकली रेफर कर रही है एन बॉलिन को। मैं लिख देती हूँ फ्रेंड्स, यहाँ पे ये नेम आपने ध्यान में रखना है, एन बॉलिन, ठीक है। ये एक विमन है बेसिकली टू होम जो आपके सर थॉमस वेट हैं, ही लव्ड अ लॉट एंड ही लेटर मतलब जो बाद में किंग हेनरी 8th की वाइफ बन जाती है। फर्स्ट द लवर ऑफ कोर्स थॉमस वेट की, एंड देन आफ्टर शी बिकेम द वाइफ ऑफ किंग हेनरी द 8th। होप आप यहाँ पर इंटरलिंक करके अभी उसको अच्छे से सिचुएशन को अंडरस्टूड कर सकते हैं कि इनकी ये लवर रह चुकी हैं। और यहाँ पर जो इन्होंने टाइटल दिया है, हुज लिस्ट टू हंट, राइट। तो बेसिकली जो पॉइंट है ना, बिगिन कर रहा है ऐसा बोल के, ही ट्राइड टू हंटिंग। अभी वो एक डियर को हंट कर रहा है। जो डियर यहाँ पर बेसिकली सिम्बोलाइज किया गया है वो एग्जैक्टली कौन है, वो विमन है। वो विमन है बेसिकली, लव है आपके सर थॉमस वेट का, जिसको इन्होंने हंट करना चाहा। दे ट्राइड टू हंटिंग और ही हैज़ बीन चेजिंग हर फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट इवन दो शी ऑलवेज रन्स अवे। जैसे कि फाइनली उसका मैरिज हो जाता है किंग हेनरी द 8th से। सो एग्जैक्टली यहाँ पर एक ऐसी चीज़ के लिए कोशिश की जा रही है इस पोएम के अंदर जो बेसिकली एक फ्रूटलेस है, जिसका फ्रूट उसको मिलना ही नहीं है, मीन्स जो बेसिकली व्यर्थ है, राइट। उसको कोई कुछ नहीं मिलने वाला एट लास्ट। तो यहाँ पर एक लेडी के बारे में बात किया गया है बेसिकली जो फॉरबिडन है, ही शी बिलोंग्स टू किंग हेनरी द 8th। और यहाँ पे जो पॉइंट है वो गिव अप कर देता है जब वो उसको चेस कर रहा होता है डियर को। एक मतलब मेटाफिजिकली सिंबलाइज किया गया है पोएम के अंदर, बट मैं आपको एग्जैक्ट कोर आइडिया यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रही हूँ। और एक्सेप्टिंग दैट हिज लव इज होपलेस, अभी वो बाद में एक्सेप्ट कर लेता है एट लास्ट कि मैं जिस डियर को चेस कर रहा हूँ वो तो मेरे हाथ कभी लगेगा ही नहीं। इट वॉज वैन, ओके, इसको मैं यूजलेस, एक तरह से यूजलेस एफर्ट ही मैड मी, राइट। सो ओवरऑल आप देखेंगे दिस इज द एग्जैक्टली पोएम बाय आपके सर थॉमस वेट। एंड ये इनका पेट्रियार्चन सोनेट है जिसमें आप 14 लाइन्स देखते हैं, डिवाइडेड होती हैं ऑक्टेव एंड सेस्टेट में। होप यू अंडरस्टैंड। जो फर्स्ट 8 लाइन्स होती हैं वो ऑक्टेव होता है और जो लास्ट 9 to 14 लाइन्स रहती हैं वो सेस्टेट होता है। तो ओवरऑल इस टाइप के जो सोनेट्स रहते हैं इसमें आप देखेंगे स्टार्टिंग का जो ऑक्टेव होता है उसमें पोइट का स्ट्रगल दिखाया गया है फॉर लव के लिए, और जो सेस्टेट आ जाता है तो उसमें कहीं ना कहीं उसको रियलाइजेशन हो जाता है, वो सरेंडर कर देता है, राइट, वेदर ही विन और मतलब कि fail. So this is the basically pattern of sonnets, 14 line sonnets I'm talking about. So overall मैंने आपको यहाँ पे सभी important things suggest कर दिया that you really need to understand. अभी जो next यहाँ पर ये लिखा है ना पेट्रियार्चन translations, तो गाइस इसको बेसिकली सिंबलाइज किया गया है द फैक्ट ड्यूरिंग द अर्ली रेनेसा या ट्यूडर एज की अगर मैं बात करूँ तो जो इंग्लिश पोइट्स थे वर कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस थे टूवर्ड्स इटालियन पोएट्री, राइट। और इसमें आपको 2 more फिगर्स मैंने आपको मेन बता दिए, सर थॉमस वेट हैं और नेक्स्ट वी हैव हेनरी हावर्ड एंड अर्ल ऑफ सरे। सो ओवरऑल दीज 2 गाय कंसिडर द फादर ऑफ ऑफ कोर्स जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया है सोनेट्स, ठीक है। तो दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं हेल्प किया है इंट्रोड्यूस करने में इन लिटरेचर, इन इंग्लिश लिटरेचर में आपकी पेट्रियार्चन सोनेट्स को। तो दिस इज द वे आई डिस्कस अबाउट हियर पेट्रियार्चन सोनेट ट्रांसलेशंस इन इंग्लिश, ओके। तो ये बहुत ही मतलब ट्रांसलेट करते थे, अडॉप्ट करते थे कहीं ना कहीं पेट्रियार्च सोनेट्स को इनटू इंग्लिश में। तो ओवरऑल यू अंडरस्टैंड अबाउट हियर। नाउ लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट वन, जॉन स्केल्टन। सो गाइज नेक्स्ट टॉक अबाउट जॉन स्केल्टन, जिनका टाइमलाइन भी है 1460 to 1529, कीप इन योर माइंड। तो बेसिकली जो जॉन स्केल्टन है आपके वो इंग्लिश पोइट हैं एंड सटायरिस्ट स्कॉलर हैं और ही लिव्ड ड्यूरिंग द ट्रांजिशंस फ्रॉम द मिडल एजेस ऑफ द
रेनेसा। सो ओवरऑल इनकी जो पोइट्रीज है वो कहीं ना कहीं ब्रिज स्टैब्लिश करती है बिटवीन मेडिवल मॉरल सटायर एंड रेनेसा ह्यूमनिज्म। तो इनका एसोसिएशन कहाँ कहाँ से है? मेडिवल moral satire and Renaissance humanism, right? So here I discuss about अभी इनका जो फेमस वर्क मुझे जिसके पर्पज से बेसिकली मैंने इनको इंक्लूड किया इन दिस लिस्ट ऑफ माइंड, दिस इज कॉलिन क्लाउड। बेसिकली जॉन स्केलेटन का ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट satirical poem है which repeatedly asked in examination of your 1519 around it was written, right? और posthumous इसको पब्लिश कराया था आफ्टर द डेथ ऑफ स्केलेटन, क्योंकि 1529 में इनकी डेथ हो जाती है और इसको 1519 में लिखा गया था। इट मीन्स इट वाज पब्लिश्ड आफ्टर द डेथ ऑफ आपके स्केलेटन की हो जाती है। एंड ये एक सटायरिकल पोएम है जिसे आप स्केल्टनिक वर्ड्स भी बोल सकते हैं, जहाँ पर एक ह्यूमर एंड मोरल क्रिटिकल और ऑफ कोर्स रिफॉर्मिस्ट टोन में बात किया है, जिसमें ये बेसिकली टारगेट कर रहे हैं करप्शन ऑफ द क्लर्जी एंड मोरल डिक्लाइन ऑफ सोसाइटी, राइट? तो बेसिकली ये जो कॉलिन क्लाउड है ये नेम बेसिकली एक कॉमन इंग्लिश शेफर्ड यानी कि जो कंट्री मैन होते हैं उसको कॉलिन क्लाउड बोला गया है या सिम्बोलाइज किया गया है। तो बेसिकली ये सिम्बॉलिक फिगर है जिसका मीनिंग है कॉमन इंग्लिश शेफर्ड। कॉमन इंग्लिश जो शेफर्ड है ना, उनको कहीं ना कहीं यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है। सिंबॉलिक बेसिकली फिगर है कॉलिन क्लाउड। और यहाँ पर जो एक ऑनेस्ट मैन है जो हमेशा सच बोलता है और इविल्स ऑफ द सोसाइटी एंड चर्च के बारे में, तो उसको कहीं ना कहीं टारगेट किया है, ठीक है। तो इसको बिकॉज इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द रेन ऑफ हेनरी द एट्थ, तो दैट्स वाई आप देखेंगे उस समय की अगर मैं बात करूँ तो उस समय देयर वॉज करप्शन इन द चर्च बिफोर द रिफॉर्मेशन। तो दैट्स वाई वो कहीं ना कहीं अपनी इस राइटिंग में एक्सपोज कर रहे हैं, मॉक कर रहे हैं उन सभी इविल्स को, ठीक है। तो ये इनका बेसिकली जो पोएम है स्केल्टन का अर्ली वॉइस कंसीडर किया जाता है ऑफ प्रोटेस्ट, राइट? होप यू अंडरस्टैंड। अभी इसमें जो है पोयम है, इसमें आप देखेंगे रस्टिक नरेटर जो कॉलिन क्लाउड जिसे मैंने बताया सिंबोलाइज कर रहा है एक कॉमन शेफर्ड को, तो वो बेसिकली नरेटर है ऑफ द पोयम का। और किस तरीके से वो क्लेम कर रहा है टू बी एन ऑनेस्ट सिंपल मैन फ्रॉम द कंट्री साइड, तो उसी के बारे में यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया इस पोएम के अंदर। और जितना भी फैक्ट्स था आई हैव टॉक्ड अबाउट इट, इट इज़ बेस्ड ऑन मॉरल वॉइस और कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट है, ये फर्स्ट प्रोटेस्ट है टुवर्ड सोसाइटी, इविल प्रैक्टिसेस ऑफ सोसाइटी। सो ओवरऑल आपने इसको स्टडी करना इन अ प्रॉपर मैनर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट वी हैव निकोलस उदाल। सो फ्रेंड्स आपके निकोलस उदाल, राइट, जिनका टाइमलाइन वी हैव 1504 टू 1556 अराउंड। एंड इनका जो बेसिकली मतलब बिलोंगिंग है इट्स द एज ऑफ द ट्यूडर एज। द ट्यूडर एज से इनका एसोसिएशन आप मान के चलिए इन लिटरेचर। और ये प्ले राइट, स्कूल मास्टर एंड ह्यूमनिस्ट स्कॉलर भी हैं, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स ही इज मोस्ट फेमस फॉर राइटिंग राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, ऑफ कोर्स फर्स्ट रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर। दिस इज द फर्स्ट कॉमेडी इन इंग्लिश लिटरेचर, राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर, फर्स्ट कॉमेडी, राइट? आपने इस चीज़ को ध्यान में रखना है, रेगुलर इंग्लिश कॉमेडी इट इज़ और फर्स्ट कंसिडर की जाती है। सो बेसिकली राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर इज द फर्स्ट इंग्लिश कॉमेडी रिटन इन द स्टाइल ऑफ क्लासिकल रोमन कॉमेडीज। इसको क्लासिकल रोमन कॉमेडी एज ए टाइप ऑफ लिखा गया है। सो ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। और इसमें जो आपको स्ट्रक्चर देखने मिलेगा इट इज़ 5 एक्ट्स, जिसमें इंक्लूडेड हैं 5 एक्ट्स, ठीक है। एक्ट्स एंड सीन्स जो बेसिकली डिविजन्स, राइट? तो प्लॉटस एंड टेरेंस, होप यू अंडरस्टैंड हियर। तो इसको बेसिकली बिगनिंग कंसिडर किया जाता है ऑफ ट्रू इंग्लिश कॉमेडी ट्रेडिशन का। दिस क्वेश्चन ऑलरेडी हैव बीन आस्क्ड इन एग्जामिनेशन ऑफ योर, दैट्स व्हाई आई एम जस्ट गोइंग टू डिस्कस हियर। और दिस वॉज पब्लिश्ड 1566 1566 द ईयर व्हेन उडास डेथ। आफ्टर आप मान के चलिए पोस्टमस इट वॉज पब्लिश। और एक ये कॉमेडी ऑफ मैनर्स का टाइप है, रोमांटिक कॉमेडी इट इज़
और इम्पॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। एंड यहाँ पर ना आपको इसमें ये एक प्ले जो है इसमें आपको एक फ़नी स्टोरी देखने मिल जाएगी ऑफ राल्फ रॉयस्टर डॉयस्टर की, जो किस तरीके से मतलब एक मैन है हु थिंक एवरी वुमन लव्स हिम, जिसका एक ये मेंटालिटी है कि जितना भी वुमन है वर्ल्ड का वो सब उसको प्यार करेंगी। ही फॉल्स इन लव विद डैम a rich widow already engaged with Gawain, right? And he servant of Mary Greek, मतलब there are lot of women name जो आपकी कहीं ना कहीं interlinked है with the life of Ralph Royster Doyster, right? So this is the play about, तो आप देखेंगे it's a foolish pride and vanity based on mockery। यहाँ पर किया गया है social of course pretensions को, women's wisdom दिखाया गया है एंड order and harmony दिखाया गया है। तो it's a first true English comedy। क्लासिकल इन्फ्लुएंस इसमें आपको प्लॉटस एंड टेरेंस का देखने मिल जाएगा फ्रॉम, एंड इट वाज रिटन इन वर्ड्स, राइमिंग कपलेट्स में इसको लिखा गया है। फुलिश हीरो, विटी सर्वेंट एंड क्लेवर हीरोइंस आपको इसमें देखने मिल जाएगी। सो ओवरऑल फुलिशनेस को किस तरीके से पनिश किया गया है, दिस इज अबाउट प्ले। ओके, हियर आई डिस्कस अबाउट दिस इंपॉर्टेंट वर्क एंड नाउ वी विल टॉक अबाउट विलियम टिंडेल। सो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं विलियम टिंडेल का अलग ही इन्फ्लुएंस है और अलग ही इंपॉर्टेंस है लिटरेचर एग्जामिनेशन ऑफ योर। सी इनका टाइमलाइन वी हैव 1494 टू 1536 और वॉज एन इंग्लिश स्कॉलर ही वॉज, प्रीस्ट भी रहे एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसलेटर ही वॉज, एंड ही इज मोस्ट फेमस फॉर मेकिंग द फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द न्यू टेस्टिमेंट। ठीक है, द न्यू टेस्टिमेंट डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीक, डायरेक्टली फ्रॉम ग्रीक। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है क्योंकि एग्जामिनेशन में आपको टाइप ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम टिंडेल से मिलते हैं और टिंडेल का इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ न्यू टेस्टामेंट पूछा जाता है विच वॉज केम 1526। तो ड्यूरिंग टिंडेल्स टाइम आप देखेंगे जो बाइबल था वॉज अवेलेबल ओनली इन लैटिन, जो बाइबल था इट वॉज अवेलेबल ओनली इन लैटिन विच कॉमन पीपल कुड नॉट अंडरस्टैंड, जिसको कॉमन पीपल अंडरस्टूड कर ही नहीं पाते थे बिकॉज दे अंडरस्टैंड इंग्लिश लैंग्वेज। सो द कैथोलिक चर्च का जो एक कंट्रोल्ड था ओवर रिलीजियस टीचिंग्स एंड वो कहीं ना कहीं अलो नहीं करते थे ट्रांसलेशंस इनटू कॉमन लैंग्वेजेस, क्योंकि अगर वो कॉमन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन एसोसिएट कर देंगे या परमिशन दे देंगे तो इससे जो इनका कंट्रोल था वो कहीं ना कहीं मतलब छूट जाएगा उनसे। ठीक है, तो इसीलिए जो एक ह्यूमनिज्म है, एक जो रिफॉर्मेशन है इन द इन्फ्लुएंस ऑफ मार्टिन लूथर्स, तो आप देखेंगे बहुत से जो स्कॉलर्स थे वांटेड ऑर्डिनरी पीपल टू रीड द बाइबल देमसेल्व्स। तो दैट्स वाई ये जो आपका इंपॉर्टेंट वर्क विलियम टिंडेल का 1526 में आया है द न्यू टेस्टामेंट, ठीक है, जिसको बेसिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है फ्रॉम डायरेक्ट ग्रीक, नॉट फ्रॉम लैटिन, फ्रॉम ग्रीक इसको ट्रांसलेट किया गया है क्योंकि लैटिन को ट्रांसलेट करने का परमिशन दैट वाज नॉट राइट। सो फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन फ्रॉम ग्रीक, और कहीं ना कहीं इसने बाइबल को एक्सेसिबल बना दिया टू कॉमन इंग्लिश पीपल को लेकर, एंड ऑफ कोर्स फाउंडेशन भी रखा फॉर लेटर इंग्लिश बाइबल्स। ठीक है, जो ग्रेट बाइबल्स लाइक जेनेवा बाइबल, किंग जेम्स बाइबल, इन सभी को प्लीज़ देख के जाएगा क्योंकि यहाँ से भी आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में मिले हैं, नॉट इन 225 बट बिफोर 223, और अगर 224 आप एग्जामिनेशन देखेंगे एंड पास्ट ऑल्सो पेपर्स ऑफ यू चेक द यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर यू सी फ्रॉम दी जेनेवा बाइबल एंड ऑफ कोर्स किंग जेम्स बाइबल एंड द न्यू टेस्टिमेंट से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, राइट। सो हियर यू अंडरस्टैंड अबाउट इट। नाउ लेट्स मूव ऑन अहेड। सो बेसिकली नेक्स्ट आई वुड लाइक टू कवर माइल्स कार्वरडेल, जो बेसिकली आपके इंग्लिश रिफॉर्मर रहे हैं, प्रीस्ट रहे हैं एंड ऑफ कोर्स बाइबल ट्रांसलेटर रहे हैं, एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर प्रोड्यूसिंग द फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, फर्स्ट complete प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल, ठीक है, 1535। ओके, और इन्हीं को कार्वरडेल बाइबल बोला गया है। सी आई हैव मेंशन हियर, सो दिस इज फर्स्ट कंप्लीट प्रिंटेड इंग्लिश बाइबल इन 1535, राइट। और इनका जो आपके माइल्स कार्वरडेल का टाइमलाइन है इट्स 1488 टू 1569, राइट, ऑनवर्ड्स। एंड अगर मैं आपसे बात करूं कि जो आफ्टर विलियम टिंडेल का न्यू टेस्टिमेंट आया था 1526, पीपल वांटेड अ कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश, क्योंकि अब उनका इंक्रीजमेंट जो है कहीं ना कहीं जो एक मतलब इंटरेस्ट है टूवर्ड्स बाइबल, टू अंडरस्टैंड द बाइबल इन अ एक्चुअल मैनर, इट गोना इनहेंस
आफ्टर 1526 जो विलियम टिंडेल का न्यू टेस्टामेंट आया था, देन आफ्टर अब लोगों का जो एक कहीं ना कहीं उनका एक जो एरिया है, इंटरेस्टेड एरिया है, दे वांटेड अ कंप्लीट बाइबल इन इंग्लिश इंक्लूडिंग बोथ ओल्ड टेस्टामेंट एंड न्यू टेस्टामेंट। तो ओवरऑल जो टिंडेल थे वॉज एक्सक्लूडेड, उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था 1536 में, जब वो अपना वर्क फिनिश भी नहीं कर पाए थे। तो माइल्स कावर्डेल जो है आपके, दिस पर्सन वॉज अ फ्रेंड एंड एडमायरर ऑफ टिंडेल, ये इनके ग्रेट फ्रेंड थे। तो इन्होंने कंप्लीट किया द रेस्ट ऑफ द बाइबल यूजिंग टिंडेल्स अर्लियर ट्रांसलेशन। सो ओवरऑल ये जो माइल्स कावर्डेल जो कंप्लीट आपका प्रिंटेड बाइबल है, इट्स anyhow inspired by the Tyndale's the New Testament. Hope you understand here the interlinked मैंने आपको करके समझाया है यहाँ पे। तो जो कावर्डेल बाइबल है became the first complete printed English Bible, that is called first complete printed English Bible. Okay, इस चीज़ का आपने ध्यान में रखना है क्योंकि एग्जामिनेशन में यहाँ से confusing question can be asked, so be prepared for it also. Okay, अभी next we have Erasmus, the praise of folly. सो बेसिकली फ्रेंड्स, इरास्मस इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वॉज अ डच स्कॉलर, ये डच स्कॉलर है, डच स्कॉलर, राइट, प्रीस्ट भी रह चुके हैं एंड ऑफ कोर्स ह्यूमनिस्ट भी हैं, और ही कंसीडर द ग्रेटेस्ट ह्यूमनिस्ट थिंकर ऑफ द नॉर्दर्न रेनेसा, नॉर्दर्न रेनेसा के ये बेसिकली क्योंकि डच से इनका एसोसिएशन है। तो ओवरऑल इनका जो ये वर्क है द प्रेज ऑफ फॉली दैट आई इंक्लूड हियर इन दिस लिस्ट ऑफ माइन, और बेसिकली हम लोग 23 वॉक पर पहुंच चुके हैं अपनी लिस्ट के। ये रिवीजन सीरीज है जहां पे मैं आपको ब्रिटिश लिटरेचर फ्रॉम द 14th सेंचुरी कवर करा रही हूँ टू ऑगस्टन एज तक, और नेक्स्ट वीडियो में मैं कहाँ पर कितना और मेजर वर्क्स लेकर आती हूँ, आई विल इन्फॉर्म यू इन माई फर्दर वीडियोज़। लेट्स सी आज हम लोग कितना कंप्लीट कर पाते हैं। ओके, सो द प्रेज ऑफ फॉली बेसिकली इंपॉर्टेंट इरास्मस का मोस्ट फेमस एंड विटी वर्क है। इट वॉज रिटन लैटिन, इसको लैटिन में लिखा गया है 1509 में फर्स्ट, और इसको 1511 में पब्लिश कराया। यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड, टाइटल इसका लैटिन में भी हमारे पास है बट लिटरली उसका मीन यही है कि इन प्रेज ऑफ फॉली। ठीक है, तो ये एक सटायरिकल ऐसे है, ओवरऑल सटायरिकल ऐसे, ठीक है, इन विच फॉली यानी कि मूर्खता जिसे आप बोलते हो, फॉली को कहीं ना कहीं यू नो पर्सोनिफाइड किया है एंड मैड टू गिव अ ह्यूमरस स्पीच, जहाँ पर प्रेज किया गया है हर आउन वर्च्यू को। ठीक है, तो इट वॉज रिटन व्हेन इरास्मस वॉज विजिटिंग, जब वो सर थॉमस मोर से मिलने इंग्लैंड में गए थे, तब उन्होंने ये जो टाइटल दिया था द प्रेज ऑफ फॉली करके, इस पर उन्होंने पन किया था, और जो न्यू नेम था बेसिकली मोर्स का जो नेम था कहीं ना कहीं एंड रिफ्लेक्ट किया था जो एक स्पिरिट है रेनिसा ह्यूमनिज्म की उसको। ठीक है, तो इसमें आप देख रहे हैं जब इसकी स्टार्टिंग हो रही है ऐसे की, तो बिगिन ही मतलब गॉडेस फॉली से किया जा रहा है, जो एक लॉन्ग प्लेफुल स्पीच दे रही है जहाँ पे वो प्राउडली प्रेस कर रही हैं अपने आप को ही, और मतलब बोल रही हैं कि ब्रिंगिंग जॉय एंड कंफर्ट टू ह्यूमन लाइफ टाइप ऑफ यू नो ऐसे स्टार्ट हो रहा है आपका। एंड आई हैव डिस्कस्ड मेजर थिंग्स जो एसोसिएटेड है विद दिस वर्क एज वेल द राइटर इटसेल्फ। अभी नाउ लेट्स टॉक अबाउट जॉन फिशर। सो बेसिकली फ्रेंड, जॉन फिशर भी आपके ड्यूरिंग हेनरी द एट, इरास्मस एंड सर थॉमस मोर मतलब इनकी कंटेम्प्रेरी रहे। इंग्लिश कैथोलिक बिशप है ये, बेसिकली स्कॉलर है और राइटर भी हैं, और इनका जो बिलोंगिंग है ना वो अर्ली रेनेसा पीरियड से है। ठीक है, अभी जो मैंने यहाँ पर डिस्कस किया है कि बेसिकली जो ट्रिटाइज है एंड डिवोशनल राइटिंग्स, तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जो ट्रिटाइज है व्हाट वी मीन बाय दिस। तो देखिए जो इन्होंने ट्रिटाइज दी थी जो मेनली थी वो थियोलॉजिकल और मोरल डिस्कशन था। बेसिकली ट्रिटाइज का मतलब क्या होता है, थियोलॉजिकल एंड मोरल डिस्कशन। तो यहाँ पर ये बेसिकली क्या कर रहे हैं, जो आपके जॉन फिशर हैं कहीं ना कहीं डिफेंड कर रहे हैं कैथोलिक फेथ को, कैथोलिक फेथ को ये क्या कर रहे हैं, डिफेंड कर रहे हैं ऑफ कोर्स अगेंस्ट करप्शन एंड रिफॉर्म मूवमेंट से। ठीक है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान में रखना है। एंड डिवोशनल राइटिंग्स में तो ये वो राइटिंग्स हैं विच आर स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रेयर या फिर मोरल रिफ्लेक्शंस जहाँ पर आपको दिखता है। ठीक है, तो किस तरीके से इन्होंने बहुत ही ज़्यादा रिलीजियस टोन एंड जेंटल एंड डीप पिटी कहीं ना कहीं ये शो कर रहे हैं अपनी राइटिंग्स के थ्रू।
तो आप ना देखेंगे इनके वर्क्स जो हैं जॉन फिशर के सिंपल होते हैं, सिंसियर होते हैं और डीपली रिलीजियस टोन में रहते हैं, ठीक है। तो आपने बहुत ज़्यादा इनको स्टडी नहीं करना, ओनली आई जस्ट वांटेड टू टेल यू अबाउट ही इज़ द कंटेम्प्रेरी, क्योंकि इनको लेकर आपसे क्रोनोलॉजी पूछ ली जाती है, जॉन फिशर को एड ऑन कर देते हैं। सो यू प्लीज़ कीप इन योर माइंड। अभी जो नेक्स्ट हमारे पास है, हम लोग अभी एलिजाबेथन एज पर मूव कर चुके हैं। विलियम शेक्सपियर की मैं बेसिकली सभी ट्रेजेडीज़, कॉमेडीज़ जो टॉप हैं, इनके हिस्ट्रीज जो इन्होंने हिस्ट्रीज प्लेज लिखे हैं, रोमांसेस जो लिखे हैं, वी हैव डिस्कस्ड नाउ। सो इनकी ट्रेजेडीज़ में मैं सबसे पहले आपको हैमलेट, ओथेलो, किंग लियर एंड मैकबेथ, बेसिकली होकम, सी होकम करके मैंने आपको ये एक्रोनिम बना रखा है, जिसे आपने एज इट इज़ लर्न करना है। और ट्रस्ट मी, विलियम शेक्सपियर की ट्रेजेडी से, ग्रेट ट्रेजेडी से आपको इनका क्रोनोलॉजी ज़रूर से पूछा जाता है। एच फॉर हैमलेट, ओ फॉर ओथेलो, किंग, के फॉर किंग लियर, एम फॉर मैकबेथ। इसी मैनर में आपको इनको प्रिपेयर करना है, सेम सीक्वेंस में लिखा है। नाउ देन वी हैव रोमियो एंड जूलियट, जूलियस सीजर, एंटोनियो एंड क्लियोपात्रा, और कोरियोलैनस, और टिमोन ऑफ एथेंस। तो टाइटल आपको पता होने चाहिए, एंड यू मस्ट नो इज इट ट्रेजेडी और इट इज़ कॉमेडी रिटन बाय विलियम शेक्सपियर, यू मस्ट नीड अबाउट इट, ओके। अभी कॉमेडीज में आ जाइए। मिडसमर नाइट्स ड्रीम, मच अडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट, द टैमिंग ऑफ द श्रू, Love's Labor Lost, All's Well That Ends Well. These are comedies written by William Shakespeare. Major comedies I have included. And next we have history plays like Richard the Third he wrote, Henry the Fourth का part first and second he wrote, and Henry the Fifth, Henry the Sixth का part first and three as well. Richard the Second, King John, Henry the Eighth. He has wrote these histories play. So keep in your mind, डायरेक्ट आपको क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर लिस्ट से आपको हेल्प मिलेगा। एंड इनके रोमांसेस की बात करूँ, देन द टेम्पेस्ट, द विंटर्स टेल, एंड Persiles and Cymbeline. Okay, so we have discussed William Shakespeare here. Very quickly, I have revised with you all because in many time I have just discussed in my previous videos about William Shakespeare. Or if you want, trick to learn tragedies, comedies by William Shakespeare, so please check out the video complete list of my channel where you get William Shakespeare पर based मैंने जितना भी इनका works है, जितना भी इनका major works you get in your examination direct label, उन सभी का मैंने with trick आपको जस्ट लर्न कराने में बहुत हेल्प किया है। एक बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपको देखने मिल जाएगा बेस्ड ऑन विलियम शेक्सपियर, ज़रूर से वॉच कीजिएगा इफ़ यू वांट टू प्रिपेयर लॉन्ग लास्टिंग all the works written by William Shakespeare in chronology manner. Okay, abhi next we talked about Christopher Marlowe, जिनके major works we will cover in today's video: Dr. Faustus, Cumberland the Great, the Jew of Malta, Edward II, Dido, Queen the Carthage. So guys, let's revise some facts about Christopher Marlowe first. Christopher Marlowe was the greatest dramatist, जिनका timeline we have 1564 to 1593. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट हैं बिफोर विलियम शेक्सपियर, एंड ऑफ कोर्स ट्रू फाउंडर भी रहे हैं ऑफ इंग्लिश ट्रेजेडी के, राइट। इनको आप देखेंगे, इनके वर्क्स ब्लैंक वर्स एंड ऑफ कोर्स पैशन, इंडिविजुअलिज्म, जितना भी इंग्लिश ड्रामा में है ये कहीं ना कहीं इंक्लूड करते हैं अपने वर्क्स में। एंड फाउंडर भी हैं इंग्लिश ट्रेजेडी के, इंट्रोड्यूस भी किया है इन्होंने, ब्लैंक वर्ड्स को भी इंट्रोड्यूस किया है, ब्लैंक वर्ड्स ही इंट्रोड्यूस्ड, एंड ऑफ कोर्स founder of English tragedy, and then he created Marlowean hero he created, in which आप देखेंगे बेसिकली अ मैन ऑफ ग्रेट एम्बिशन, जो राइज भी हो रहा है और उसका फॉल्स भी हो रहा है बिकॉज ऑफ हिज प्राइड, राइट। और इनके जो थीम्स में आपको नॉलेज, पावर, डिज़ायर मिल जाएगा, ठीक है। तो ओवरऑल इनके जो वर्क्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट वन बाय वन। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रिवाइज डॉक्टर फॉस्टर्स, जो इनका 1594 में इट वाज रिटन अराउंड, और इसको 1604 में पब्लिश कराया गया था। एंड ट्रैजिक हिस्ट्री ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, दिस इज द सब टाइटल ऑफ डॉक्टर फोस्टर्स, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। और इस पर्टिकुलर प्ले में आप देखेंगे जो फोस्टस है, दिस इज द स्टोरी ऑफ फोस्टस, जो एक स्कॉलर होता है, वो किस तरीके से अपनी सोल को सेल कर देता है टू द डेविल, जिसका नाम होता है ल्यूसीफर। लूसीफर को वो अपनी सोल बेसिकली सेल कर देता है, और एक्सचेंज में वो एक अनलिमिटेड नॉलेज एंड पावर उससे गेन करता है। आफ्टर 24 ईयर्स, जब प्लेजर एंड प्राइड ही इज टेकन टू हेल उसमें जा रहा है, तो बेसिकली उसको सिम्बोलाइज किया जाता है द पनिशमेंट ऑफ
ओवर एम्बिशंस को लेके, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो बेसिकली जो फोस्ट है, जो स्टोरी ऑफ फोस्ट की बताई गई डॉक्टर फोस्टस है, ये जर्मन लेजेंड पर बेस्ड ऑन है, ठीक है। और इसमें ना आप देखेंगे इम्पॉर्टेंस ऑफ किस तरीके से ग्रीड जो होता है, ट्रैजिक कॉन्फ्लिक्ट्स देखेंगे बिटवीन गुड एंड इविल। यहाँ पे रेनिसा स्पिरिट दिखाया गया है, मतलब थ्रस्ट दिखाया गया है फॉर नॉलेज एंड ह्यूमर पावर के लिए, एंड इसको ब्लैंक वर्ड्स में लिखा है, फुल ऑफ ग्रैंड्योर इट वाज, ओके। अभी नेक्स्ट वी हैव टम्बरलेन द ग्रेट, इसका पार्ट फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैं आपको बता दूं जो पार्ट फर्स्ट है इट केम 1587 एंड इसका जो सेकंड पार्ट है इट केम 1588, टम्बरलेन द ग्रेट का। इसमें आपको बेसिकली इनका राइज एंड फॉल देखने मिलेगा। टम्बरलेन का जो क्या है, एक शेफर्ड है हु बिकम्स अ वर्ल्ड कॉन्क्वेरर, ठीक है। तो इसमें भी पर्टिकुलर वॉक में लिमिटलेस एम्बिशंस एंड प्राइड आपको देखने मिलेगा। इट इज़ फर्स्ट ग्रेट इंग्लिश ट्रेजेडी में से एक है, राइट, टम्बरलेन द ग्रेट। एंड फुल ग्रैंड स्पीचेस आपको इसमें मिल जाएगी, हीरोइक टोन मिल जाएगा। इसमें आपको मार्लोवियन हीरो देखने मिल जाएगा, जिसका मैंने बताया था ना, मार्लोवियन हीरो जो आपकी क्रिस्टोफर मार्लो ने क्रिएट किया है, तो उसका एग्जाम्पल आपको ऑफ कोर्स टम्बरलेन में देखने मिल जाएगा। और इस पर्टिकुलर प्ले से आपको लाइन भी पूछ ली जाती है, सो यू कीप इन योर माइंड। अभी नाउ लेट्स फोकस अबाउट द नेक्स्ट वन, द ज़ू ऑफ माल्टा, राइट। ये इनका 1590। सबसे पहली चीज़ आपने क्रोनोलॉजी ध्यान में रखना है क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स का, इनफैक्ट अदर जितने भी मैंने राइटर्स किए हैं। अभी हम लोग 31 बेसिकली मेजर वर्क में वी आर डिस्कस अबाउट 31 जब मैंने विलियम शेक्सपियर के सारे वर्क्स को काउंट नहीं किया, अदरवाइज देयर आर लॉट्स ऑफ वर्क आई हैव डिस्कस विद यू ऑल नाउ। सो सी गाइस, द ज़ू ऑफ माल्टा इंपॉर्टेंट स्टोरी है जिसमें आपको बार बार आज मिल जाएगा। जो एक ज़ू होता है, एक रिच ज़ू होता है माल्टा का, जो माल्टा बेसिकली जगह का नाम है, और जो ज़ू है उसका नाम है बाराबाज। इसको लेके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा गया है, कैरेक्टर बेस्ड आपके क्रिस्टोफर मार्लो के प्लेस से पूछ लिया जाता है। हु टेक्स एक्चुअली रिवेंज ऑन क्रिश्चियन आफ्टर दी सीज हिज प्रॉपर्टी, किस तरीके से जो क्रिश्चियन उसकी सीज कर लेते हैं प्रॉपर्टी को, उसी को वो बाकी रिवेंज ले रहा होता है। और ये एक डार्क सटायर है जो बेसिकली बेस्ड ऑन है रिलीजियस हाइपोक्रेसी, ग्रीड एंड रिवेंज पर, ठीक है। तो ओवरऑल आप इसमें देखेंगे मिक्स, ये ट्रेजेडी तो है, साथ के साथ एक ये ब्लैक कॉमेडी भी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे सटायर भी किया गया है, और ऑफ कोर्स इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ द नेक्स्ट वी हैव एडवर्ड द सेकंड, जो इनका 1592, इफ आई एम नॉट रॉन्ग द ईयर। सो ये इनका एक हिस्टोरिकल ट्रेजेडी है जो कि किंग एडवर्ड द सेकंड ऑफ इंग्लैंड के हैं, उनकी वीकनेस और उनके पैशन को लेके, और उनका जो फेवरेट किस तरीके से जो उनका गैप स्टोन था कि उसको डाउनफॉल पे ले गया, उसके बारे में डिस्क्राइब किया गया है इस पर्टिकुलर हिस्टोरिकल ट्रेजेडी में। तो ये इनका फर्स्ट इंग्लिश हिस्टोरिकल ट्रेजेडीज में से एक है, एडवर्ड द सेकंड, जो फुल्ली इमोशनल एंड ह्यूमन है, जिसमें आपको प्राइवेट लाइफ ऑफ अ किंग देखने मिल जाएगा। और ये जो बेसिकली है सोर्स फॉर शेक्सपियर रिचर्ड द सेकंड का सोर्स है, ठीक है। जो विलियम शेक्सपियर का रिचर्ड द सेकंड है उसी का सोर्स है, ठीक है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखना है। अभी नेक्स्ट वर्ड वी हैव डीडो, क्वीन द कार्थेज, 1586, ठीक है। तो आप देखेंगे इसको को ऑथर्ड किया गया है थॉमस नैश, यानी कि थॉमस नैश के साथ इन्होंने मिलकर ये लिखा है आपके क्रिस्टोफर मार्लो ने, बेस्ड ऑन है वर्जिल्स एनियाड पर, जो बेसिकली स्टोरी ऑफ क्वीन डीडो और उनकी ट्रैजिक लव जो उनका एनियास के साथ है उसको यहाँ पे डिस्कस किया गया है। तो इसमें आपको एक लव, बिट्रेयल और डेस्टिनी देखने मिलेगा। अर्ली वर्क बेसिकली ऑफ मार्लो का मोर पोएटिक एंड रोमांटिक है, जिसमें आपको मैथोलॉजी और इमोशंस एंड पैशंस देखने मिल जाएगा, ठीक है। तो हियर आई डिस्कस्ड अबाउट ऑल दी थिंग्स that you need to understand regarding this Christopher Marlowe, your major playwright of of course British literature, we studied him। तो अभी मैंने आपको टोटल 33 इतने वॉक्स वी हैव डिस्कस्ड, और फाइनली हम लोग मतलब एलिजाबेथन एज पर है। अभी नेक्स्ट वर्ड वी हैव टू कवर, काफ़ी सारे मैं आपको इसी तरीके से सेम वे में जितने भी राइटर्स लेके आई हूँ उनके मेजर वर्क्स, वी हैव एक्चुअली 100+ वर्क्स, मेजर वर्क्स, जो बेसिकली आपके एज ऑफ चौसर टू ऑगस्टन एज, ओवरऑल आप इन शॉर्ट कह सकते हैं ब्रिटिश लिटरेचर का जो क्लासिकल एरिया है, जो क्लासिक वर्क्स हैं वो मैंने कवर किए हैं इस पर्टिकुलर कंप्लीट फाइल में, विच इज़ वेरी लॉन्ग, जो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट कराऊंगी। इफ़ यू विलिंग टू गेट दिस कंप्लीट फाइल ऑफ माइंड और यू वांट टू रिवाइज दैम फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव, बट ट्रस्ट मी ये सभी आपको वर्क्स एग्जामिनेशन में डायरेक्ट मिलेंगे, इससे बाहर आपको कुछ नहीं मिलता है, इसका ट्रस्ट रखिएगा।
because these all list based on your PYQs. If you want to get this, so you have to join the membership of my channel, or iska second part I will cover in next video of mine. Till then, bye bye friends. Do like video after watching, and if you not subscribe my channel yet, do subscribe to watch consistency. Jitni bhi videos of my channel on daily basis you see, just watch them and practice for your examination.